أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم العمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة عجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل إليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم جدد الإيمان في قلوبنا اللهم زدني إيمانا ويقينا وفهما اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا آمین ثم آمین۔ ہمارا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا 14واں پارہ جو ہے الجزء الرابع العشر جو ہے اور سورہ الحجر جاری ہے، اور اس کی تلاوت جو آیات کی گئی ہے وہ جو ہے وہ اس کا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ وہ بھی وقت ہوگا کہ کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے، آپ انہیں کھاتا نفع اٹھاتا جھوٹی امیدوں میں مشغول ہوتا چھوڑ دیجیے، یہ خود بھی ابھی جان لیں گے کسی بستی کو ہم نے ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ ان کے لیے ایک مقررہ نوشتہ تھا، یعنی ایک ٹائم مقرر تھا، کوئی گروہ اپنی منہ سے آگے نہ بڑھتا ہے نہ پیچھے رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر یہ ذکر اتارا گیا یقیناً تو کوئی دیوانہ ہے، اگر تو سچا ہی ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا؟ یعنی ہر دور میں نبیوں کو جو ہے وہ اس طریقے سے جو عذاب لانے کے لیے یا فرشتوں کو لانے کے لیے کہا جاتا رہا، کیونکہ وہ اس کو مذاق سمجھتے رہتے تھے۔ ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں، یعنی ایک ہی دفعہ کسی کام کے لیے، اور جو ہے وہ فائنل جو وقت ہوتا ہے اس کے لیے اتارتے ہیں۔ اس وقت وہ مہلت دیے گئے نہیں ہوتے، اور اس وقت پھر ایک دفعہ جب وہ عذاب آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ٹائم نہیں ملتا کہ پھر اپنے اعمال کو درست کیا جا سکے۔ ہم ہی نے تو اس ذکر کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ ہم نے آپ سے پہلی اگلی امتوں میں بھی اپنے رسول بھیجے، لیکن جو بھی رسول ان کے پاس آتا وہ اس کا مذاق اڑاتے، یعنی کہ تمام قوموں میں زیادہ تر میجورٹی نہیں کیا۔ گناہ گاروں کے دلوں میں ہم اسی طرح رچا دیا کرتے ہیں، یعنی جب وہ گناہ والے دل ہوتے ہیں اور جس طرف وہ لگ جایا کرتے ہیں تو پھر اسی طرف کے رستے کھل جاتے ہیں، جیسے کہ صراط مستقیم مانگی جائے تو اس کی طرف کے رستے کھلتے ہیں۔ جیسے انسان کی چوائس ہوتی ہے ویسی ہوتی ہے۔ یہ بات سے ہمیں یہاں بالکل بھی یہ کنفیوز ہونا چاہیے کہ پہلے سے کوئی ایسی چیز کر دی جاتی ہے یا اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، نہیں، انسان کی چوائس ہے، ہر انسان اپنی چوائس کو استعمال کر رہا ہے۔ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، یقیناً اگلوں کا طریقہ گزرا ہوا، اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول بھی دیں تو وہ وہاں چڑھنے بھی لگ جائیں، یعنی کہ یہ سب کام بھی ہو جائے تب بھی وہ یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے، یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنا دیا اور دیکھنے والوں کے لیے اسے سجا دیا ہے، اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا ہے۔ ہاں مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے اس کے پیچھے دھکتا ہوا شعلہ لگتا ہے، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے، اس پر مضبوط پہاڑ ڈال دیا ہے، اس میں ہم نے ہر چیز ایک معین مقدار سے اگا دی ہے، اور ہم اسی میں ہم نے تمہارے لیے روزیاں بنا دی ہیں، اور ان کی بھی جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو۔ یہ تمام جاندار ہیں، تمام جتنے بھی جو کہنا چاہیے مخلوقات ہیں، ان سب کو روزی تو انسان تو نہیں دیتا، البتہ انسان کی روزیاں اللہ تعالیٰ نے دی۔ ہاں البتہ دنیا میں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی کسی کا بزنس ہو، اس نے لوگوں کو جاب دی ہو، یا ایسے گھر ہوتے ہیں وہاں پہ کچھ لوگ ملازم ہوتے ہیں، ملازمت کرنے کے لیے آتے ہیں، یعنی کہ اپنے اپنے کاموں کے لیے آتے، تو انسان کو لگتا ہے کہ میں نے ان کو روزی دی۔ ایسی بات نہیں ہے، اللہ نے روزیاں پیدا کی ہوئی ہیں، اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں، اور ہم ہر چیز کو اس کے مقررہ اندازے سے اتارتے ہیں۔ ہم بوجھل ہوائیں بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برسا کر وہ تمہیں پلاتے ہیں، تم اس کے ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو، یعنی انسان پانی کو جمع نہیں کرتا، نہ ہی اس کا بنانے والا ہے، نہ ہی اس کا مہیا کرنے والا ہے۔ ہاں البتہ جو اس کو ارد گرد میں مہیا ہوتا ہے اس کو اپنے گھروں تک یا اپنے علاقوں تک لے کر کے آتے ہیں۔ تو بڑے پیمانے کے اوپر جو پانی ہوتا ہے، ویسے بھی اگر آپ ندی نالوں میں جو ہے، چشموں میں جو پانی ہے، کسی بھی علاقے میں آپ چلے جائیں، پانی کا ریزروائر جو ہے وہ نیچرل جو ہوتا ہے اس کو ہم زیادہ تر یوز کر رہے ہوتے ہیں، جو آسمان سے برستا ہے ہم اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، اور جو آسمان سے برستا بھی ہے وہ بھی زیادہ تر انسان کے اپنے اختیار میں نہیں، اور بہت بڑے پیمانے پہ جو آبادیاں ہیں، انسان ہیں، وہ اس چیزوں کو جو ہے بغیر سوچے سمجھے اس حقیقت کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کا یہاں بیان کرے، ہم ہی زندہ کرتے اور مارتے، اور ہم ہی بلاخر وارث ہیں۔ تو پہلے جو پانی والی بات بھی ہے اس میں بھی یہی ہے، پانی کے بغیر زندگی جو سی ہے وہ کتنی مشکل اگر آپ سوچیں، تو بات یہ ہے کہ اس آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ تمام نعمتیں جو پیچھے بیان ہوئی اس کے باوجود آگے مزید یہ بھی بیان کر دیا کہ جو زندگی ہے وہ بھی اور جو موت ہے، ان کے وارث مرنے کے بعد جو انسان کا حال ہو جاتا ہے یا پیدا کرنے سے پہلے انسان کی طرح، اس سب تمام چیزوں کے وارث اللہ تعالیٰ ہے۔ سب نے چلے جانا ہے اور پیچھے کیا باقی رہ جائے گا اس سب کے بھی وارث اللہ ہے، اور موت اور زندگی دینے والے بھی ان کی طاقت یہ ہے کہ وہ موت اور زندگی بھی انہی کی ملکیت ہے، اور تم میں سے آگے بڑھنے والے پیچھے ہٹنے والے بھی ہمارے
तफसील में है। आपका रब सब लोगों को जमा करेगा, यकीनन वो बड़ी हिकमतों वाला, बड़े इल्म वाला। यकीनन हमने इंसान को काली और सड़ी हुई बदबूदार खनखनाती मिट्टी से पैदा फरमाया है। बिलाशुबा इंसान देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, इंसान सफाई को पसंद करता है, इंसान जो है बाकी तमाम मखलूक़ात से बहुत ही खूबसूरत है। अल्लाह ताला की अहसनुल तक़वीम, मतलब कहना चाहिए कि एक कहना चाहिए टॉप की एक मखलूक है जिसको अल्लाह ताला ने एक बड़े तरीके से पैदा किया है और वो खूबसूरत है। बिलाशुबा अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को भी बड़े प्यारे तरीके से पैदा, और भी बहुत सी प्यारी मखलूक़ात हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को जो अगर दर्जा दिया है और जिस तरह से उसको बनाया है, लेकिन देखें कि कहाँ से क्या चीज़ बनी है और प्रोडक्ट क्या बनी है। तो अल्लाह ताला ने उसकी बेस एक बयान फरमाई कि काली और सड़ी हुई। अब अल्लाह ताला को मालूम होगा कि ज़मीन को लेके वो ऐसा कौन सा प्रोसेस था जिसके अंदर से गुजार करके जैसे बयान किया, और जो बयान किया गया है मुख्तलिफ हालतों से इंसान जो है मिट्टी की तो मुख्तलिफ किस्म की हालतें होती हैं, जैसे कि खुश्क भी होती है, भीगी भी होती है, गूंदी हुई बदबूदार भी होती है। गूंदी भी एक सिंपल भी होती है जिससे बर्तन बनाए जाते हैं ना, और जब बना करके उसको खुश्क हो जाते हैं तो वो उसके अंदर आवाज़ भी आ सकती है, और फिर उसके बाद उसको आग में पका लिया जाता है, तो वो ठीकरी वाली कहलाती है। तो अल्लाह ताला ने जिस तख्लीक का ज़िक्र फरमाया से मालूम है आदम खाकी का पुतला जौन-सा था, उसको जब किसी मिट्टी से गूँधा गया तो वो पहले से पानी में भिगो के रखी हुई थी, तो उसमें बाज़ दफ़ा बदबू भी पैदा हो जाती, उससे बनाया गया। और जब सूख गई तो फिर वो वहाँ से इस तरह का हो गया जैसे कि बर्तन जैसे आग में पका लिया जाता है या धूप में उसको रख दिया जाए तो वो सख्त हो जाता है, आवाज़ भी उसको ठोकें, मतलब हाथ से या कुछ उसको लगाएँ तो उसकी आवाज़ आती है। तो जैसे कि मिट्टी के बर्तनों की आवाज़ होती है ना, उसके ऊपर आप उँगली से भी हाथ मारें या कुछ आवाज़ देखते हैं कि ये कितना मज़बूत है, खनखनाती हुई आवाज़ जिसको कहा जाता है। तो ये इसको सलसालिन जो है ना उसका तर्जुमा जो है वो उर्दू में इस तरह से किया गया है। और इससे हम पहले जिन्नात को हमने लू वाली आग से पैदा किया। बेसिकली आग के ऊपर, शोले के ऊपर जो एक गर्म लू सी होती है, और जो है वहाँ से जो गर्माइश वाली जो हवा होती है वो एरिया जौन-सा है वो नज़र नहीं आता, लेकिन कभी आप देखें गौर से फ्लेम के ऊपर जो है वो इंतहाई, मतलब थोड़ा-सा अगर गौर से देखते रहें तो थोड़ा-सा महसूस होता है कि चीज़ें जैसे मंज़र हिल रहा है। वो जो गर्म हवा होती है शोले के ऊपर, फ्लेम के ऊपर, वो वाली मतलब उस गर्म हवा से जिन्नात को जो है वो पैदा किया। तो अल्लाह ताला ने तो बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के वो बता दिए इंग्रीडिएंट्स, और देखें कि चीज़ कैसे पैदा फरमाई है। और हम अपने आप को देखते हैं तो हमें नहीं महसूस होता कि हम मिट्टी से बने हुए हैं, हमें तो लगता है कि हम उस हिसाब से जो चीज़ बयान की जा रही है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ पैदावार है। लेकिन ये इंसान की पैदाइश के बनाने के प्रोसेस है ना, किसके कहाँ से कोई चीज़ बनी, किस तरह से कोई चीज़ बनी। तो अल्लाह ताला ने इंसान को ये बयान कर दिया, और इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला का कोई मुकाबला करने लगे तो इंसान को अपनी हदूद और अपनी औकात को देखना चाहिए कि वो किस तरह से क्या पैदावार है, उसकी क्या ज़िंदगी है, उसके पास है क्या, किस चीज़ का मालिक है इंसान, कि जो इंसान अल्लाह ताला से मुकाबला कर सके। इसी तरह जिन्नात के बारे में भी यही है। और जब तेरे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं एक इंसान को काली और सड़ी हुई खनखनाती मिट्टी से पैदा करने वाला हूँ, अल्लाह ताला ने बताया कि मैं ये मखलूक पैदा करने वाला हूँ और इस तरह इस मटीरियल से पैदा करने वाला हूँ। तो जब मैं इसे पूरा बना चुकूँगा, उसमें अपनी रूह फूँक दूँगा, तो तुम सब ने इसके लिए सजदे भी पढ़ना है। चुनांचे तमाम फरिश्तों ने सबने सजदा कर लिया। ये बहुत फास्ट फॉरवर्ड करके जो है ना ये मामला यहाँ पे दोबारा बताया जा रहा है, जबकि अल्लाह ताला ने पीछे इसको बाकायदा स्टेप बाय स्टेप बताया है, और पूरी जो डायलॉग हुआ वहाँ पे मखलूक़ात का भी और किस तरह से हुआ। लिहाज़ा यहाँ पे क्या बात है जो अल्लाह ताला यहाँ बयान करना चाह रहे हैं उसको देखते हैं। मगर इब्लीस ने इसने सजदा करने वालों में शमूलियत करने से इनकार कर दिया। एक ही यानी मखलूक थी वहाँ पे जिसने इनकार किया था, वो इब्लीस था। अल्लाह ने फरमाया, इब्लीस तुझे क्या हुआ कि तूने सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ? वो बोला कि मैं ऐसा नहीं कि इस इंसान को सजदा करूँ जिसे आपने काली और सड़ी हुई खनखनाती मिट्टी से पैदा किया, क्योंकि जिस मटीरियल से इंसान बनाया गया था वो मटीरियल जौन-सा था वो इतना काबिल कदर नहीं है और वो कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है कि, और उसकी वजह से उसने ये इस चीज़ का जवाब दिया कंपैरिज़न अपने आप को करके उससे। बिलाशुबह अल्लाह बेहतर जानते होंगे कि कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी है, तारीफ़ के काबिल है। बहरहाल जो अल्लाह ताला का हुक्म था, लेकिन उसने अल्लाह के हुक्म से इनकार किया था। मेन जो है ना प्रॉब्लम ये है कि उसकी गलती क्या बीच में बनी। तो फरमाया तो अब बहिश्त से निकल जा, क्योंकि तू रांदा दरगाह है और तुझ पर मेरी फटकार है क़यामत के दिन तक। अब देखिए, बनी तो इंसान एक जो वो समझ रहा था कि अच्छी चीज़ नहीं है ये, और ये इतना दर्जे के इसका कैसे मालिक हो गया। तो बात है कि अल्लाह जिसको दर्जा देना चाहे, तो बाज़ दफ़ा हमें चीज़ें बहुत अजीब सी नज़र आ रही होती हैं, या हम जब कभी चीज़ को इंसान खुद जज करने लगते तो हम हकीकतों के मामलात नहीं जान सकते कि वो क्या होते हैं, और वो सिचुएशन, वो चीज़ें भी और इंसानों के बारे में भी अगर देखें, अल्लाह बेहतर जानते हैं कि उन्होंने किससे क्या काम लेना होता है। लिहाज़ा अल्लाह को ज़्यादा पता था कि जिस वक़्त इब्लीस जो है वो नफ़रत खा रहा था आदम से, और अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से क्या काम लेना था, तो अल्लाह को ज़्यादा बेहतर पता है। तो लिहाज़ा हमेशा जो अपने ऊपर कोई फ़ख्र और गुरूर करने की बजाय अगर कोई चीज़ अता होगी, इंसान को ये आयत में याद रखना चाहिए कि इंसान बना किस चीज़ से है। तो बहरहाल और जो दर्जा मिला है या नेमतें मिली है वो अल्लाह की रहमत और करम से है। तो जब उसको ये कह दिया गया तो कहने लगा कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे उस दिन तक ढील दे दे जब लोग दोबारा उठा खड़े किए जाएँगे। फरमाया कि अच्छा तू इनमें से है जिन्हें मोहलत मिली है रोज़े मुकर्ररा के वक़्त। अब अल्लाह ताला ने मान लिया, अल्लाह ने मान लिया तो उसको वो मोहलत मिली है, ठीक है? और ताकतें मिली हैं जो उसने माँगी थी। शैतान ने कहा, मेरे परवरदिगार, चूँकि तूने मुझे गुमराह किया है, मुझे भी कसम है कि मैं भी ज़मीन में इनके लिए गुनाहों का रास्ता कर दिखाऊँगा, इन सबको बहकाऊँगा। बहुत बुरी बात। अल्लाह ताला यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो शेयर कर रही हैं कि शैतान जो है जिसको के दूसरे सब लोग दोस्त बनाते हैं अल्लाह को छोड़ करके, तो ये उसकी मेंटालिटी ऐसी है कि अपनी गलती उसने अल्लाह ताला की तरफ लगा दी, मंसूब कर दी कि अल्लाह को कहा कि तूने मुझे गुमराह किया है। तो बात ये है कि फैसला तो उसने अपने दिल में खुद किया था, और सजदा करने से पहले ही वो अपने दिल में फैसला कर चुका था, वो जजमेंट अपनी दे चुका था, वो पहले से राज़ी हो गया था कि वो बेहतर है, और वो जो उसका तकब्बुर था और हसद था वो मिल के सामने आ गया। तो बात ये है कि वो तो सिर्फ एक मौका मिला उसको कि उसका इज़हार हो जाता, और शायद अल्लाह ताला ने ये सजदा करवा करके बहुत सारी चीज़ें जो सी हैं वो एक
बाज़ दफ़ा होता है कि एक वाक़या होता है या एक मौका होता है या एक टेस्ट होता है, जिसकी वजह से कि बहुत सारी हकीकतें सामने आ जाती हैं। तो अल्लाह ताला ने ये चीज़ यहाँ जो बयान की है, इस टेस्ट के ज़रिए पता चला कि फ़रिश्ते कामयाब हो गए और शैतान नाकाम हो गया। और वो नाकाम होने के बाद वो अपनी गलती तस्लीम नहीं कर रहा, बल्कि अल्लाह ताला को जो है वो ब्लेम कर रहा है। तो मुझे भी कसम है कि मैं भी कि वो भी ज़मीन में क्या करेगा, आदम को जो है गुनाहों का रास्ता दिखाएगा और उन सबको बहकाएगा। तो ये है हकीकत शैतान की। सिवाय तेरे इन बंदों के जो मुंतखब कर लिए गए हैं, इरशाद हुआ कि हाँ, यही मुझ तक पहुँचने की सीधी राह है। मेरे बंदों पे तुझे कोई गलबा नहीं, लेकिन जो गुमराह लोग हैं वो तेरी पैरवी करेंगे। यकीनन इन सब के वास्ते की जगह जहन्नुम है, जिसके 7 दरवाजे हैं और हर दरवाजे में इनका एक हिस्सा बटा हुआ है। अल्लाह माफ़ करे। इसमें बड़े और तरीके से जो है जहन्नुम की जो बात बयान की है, जबकि तफसीर में आता है कि जो अल्लाह ताला के साथ जो शिर्क किया गया है, उन सब के लिए एक ख़ास दरवाजे वहाँ पे होंगे, उनके हिसाब से, उन ग्रोहों के हिसाब से। परहेज़गार जन्नती लोग बागों चश्मों में होंगे, यानी जहन्नमियों के मुकाबले में ये जो कामयाब अनअमता अलैहिम वाले लोग हैं ना, ये उनके साथ ये मामला होगा। इनसे कहा जाएगा सलामती और अमन के साथ इसमें दाखिल हो जाओ, इनके दिलों में जो कुछ रंजिश और कीना था वो हम सब कुछ निकाल देंगे। वो भाई-भाई बने हुए एक-दूसरे के सामने आमने-सामने तख्तों पर बैठे होंगे, ना तो वहाँ उन्हें कोई तकलीफ छू सकती है, ना वो वहाँ से वो कभी निकाले जाएँगे। मेरे बंदों को खबर दे दो कि मैं बहुत ही बख्शने वाला, बड़ा ही मेहरबान हूँ। साथ ही मेरा अज़ाब भी नहायत दर्दनाक है। इन्हें इब्राहीम के मेहमानों का भी हाल सुना दो कि जब उन्होंने उनके पास आकर के सलाम कहा तो उन्होंने कहा कि हमको तो तुमसे डर लगता है। उन्होंने कहा कि डरो नहीं, हम तो तुझे एक साहिब फ़हम फ़र्ज़ंद की बिशारत देते हैं। अब चूँकि पहले भी ये वाक़या बयान हो चुका है और पहले किसी और तरह से अल्लाह ताला ने तफ़सील दी थी और यहाँ लगता है इसको फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड कर दिया गया है, वहाँ तक आगे जो खुशखबरी की बात है। कहा क्या इस बुढ़ापे के आ जाने के बाद तुम मुझे खुशखबरी देते हो? ये खुशखबरी तुम कैसे दे रहे हो? उन्होंने कहा कि हम तो आपको बिल्कुल सच्ची खुशखबरी सुनाते हैं, आप मायूस लोगों में शामिल ना हो। कहा अपने रब की रहमत से नाउम्मीद तो सिर्फ़ गुमराह और बहके ही लोग होते हैं। तो अब आप ये देखिए कि नाउम्मीदी जो होती है वो कुफ़र होती है और बहके हुए और गुमराह लोग की बात कर रहे हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम। पूछा कि अल्लाह के भेजे हुए फ़रिश्तों तुम्हारा ऐसा क्या अहम काम है? अब वो चूँकि अब जब पहचान गए, जब वो पीछे जब जैसे ज़िक्र आया बिचड़ा भुना वाले क्या है वो नहीं खा रहे थे, तब पता चला कि वो फ़रिश्ते हैं और अब वो उन फ़रिश्तों से उनकी बात मालूम की जा रही है। तो उन्होंने जवाब दिया कि हम मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं, मगर ख़ानदान लूत के इन सब को तो ज़रूर बचा लेंगे, सिवाय इनकी बीवी के हमने इसे रुकने और बाकी रह जाने वालों में मुकर्रर कर दिया है। जब भेजे हुए फ़रिश्ते आले लूत के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा कि तुम लोग तो कुछ अनजान से मालूम हो रहे हो। तो जब वो आले लूत के पास पहुँचे तो वहाँ पे कहना चाहिए कि उनको उनके साथ इस तरह से ख़िताब किया गया कि क्योंकि ये फ़रिश्ते जो थे वो अनजान इसलिए थे कि वो कुछ इलाके के रहने वाले नहीं थे और इसके अलावा ये था कि वो जो है खूबसूरत लड़कों की नौजवान लड़कों की शक्ल में आए। तो और ये इस वजह से उनको इस तरह से कलाम किया गया है। उन्होंने कहा कि नहीं, हम बल्कि हम तो आपके पास वो चीज़ लाए हैं जिनसे ये लोग शक व शुबा कर रहे हैं, यानी कि जिस बात के ऊपर ये कौम जो है वो नबी की बात को नहीं मान रही, क्योंकि उनके अंदर नबी मौजूद थे, अल्लाह ताला का हुक्म बयान कर रहे थे, लेकिन वो उस दावत की तरफ नहीं आ रहे थे और उसकी बजाय अपनी जो दिल की मर्ज़ी थी और शैतानी रास्ता था उसके ऊपर थे। हम तो तेरे पास सही हक़ लाए हैं और हम हैं भी बिल्कुल सच्चे। अब तो आप अपने ख़ानदान समेत इस रात के किसी हिस्से में चल दें और आप इनके पीछे रहना, यानी जिस वक़्त वो आए थे उसी रात को वो कहते कि आप चलें वहाँ से और ना खबरदार मैं आप में से कोई भी पीछे मुड़कर ना देखे, यानी कि जो कुछ भी आवाज़ आए या कुछ भी होगा पीछे नहीं देखना और जहाँ आपका हुक्म दिया जा रहा है वहाँ चले जाना। हमने इस इनकी तरफ इस बात का फ़ैसला कर दिया कि सुबह होते-होते इन लोगों की जड़ें काट दी जाएँगी और शहर वाले खुशियाँ मनाते हुए आएँ। अब इंसान की बदबख्ती देखिए उस कौम की कि उनके बारे में अज़ाब का फ़ैसला हो रहा है, पूरी तफ़सील बयान हो रही है और उसी वक़्त वो नाचते-गाते, खुशियाँ मनाते हुए अपने आप को लिए वहाँ चले आए और इंसान की मतलब ये जो दोनों बातें सामने है ना कि उनके साथ क्या होने लगा है और वो लोग क्या कर रहे हैं। तो इसको इसको इंसान को ना बड़ा महसूस करके इसको सोचना चाहिए कि खुदा ना ख़ास्ता जब इंसान बड़ी खुशियों में पड़ा हुआ होता है और अल्लाह ताला की हुक्म की नाफ़रमानियाँ कर रहा होता है, तो उस वक़्त ये समझ रहा होता है कि उसके ऊपर कोई अज़ाब नहीं नाज़िल होगा। तो ये देखिए इन लोगों के साथ क्या हुआ और लूत ने कहा कि ये लोग मेरे मेहमान हैं, तो मुझे रुसवा ना करो। और उस वक़्त जो भी उन्होंने उनके साथ गुफ्तगू की कि उनके मेहमानों को उनको दे दिया जाए, तो उन्होंने उसका उनको ये जवाब दिया, अल्लाह से डरो और मुझे रुसवा ना करो। दोबारा उन्हें कहा, किसी पैगंबर का इस तरीके से मतलब कहना चाहिए बार-बार एक ऐसी चीज़ को कहना क्योंकि उनकी उन लोगों के ऊपर कोई ताकत नहीं थी। वो बेकाबू हुए हुए लोग थे। तो वो बोले कि क्या हमने तुझे दुनिया भर की ठेकेदारी से मना नहीं कर रखा हुआ? यानी क्या वो उनके मेहमानों के बारे में कह रहे हैं कि इनका आपके साथ क्या वास्ता है? या आपके क्या लगते हैं कि जो आप इनके ठेकेदार बने हुए हैं और दुनिया भर की ठेकेदारी अब गुफ्तगू का अंदाज़ देखें कि वो नहीं चाहते कोई भी अल्लाह ताला की बात सुनना। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा अगर तुमने करना ही है तो ये मेरी बच्चियाँ मौजूद हैं। तो उन्होंने उनको अब ये बात इस तरह से नहीं था कि वो कोई इस तरह से कह रहे थे कि किसी बेहयाई की वजह से कि उनकी बेटियों की जानिब उन्होंने इस तरह से इशारा किया, बल्कि बात ये थी कि उन्होंने जिस तरीके से बात की, ये चूँकि कुरान में चूँकि मुख्तसरन बयान हो रही होती है, तो निकाह तो हर दौर में मौजूद होता है। तो अल्लाह ताला के बनाया हुआ ये एक असूल है। तो बात ये है कि उन्होंने उनको निकाह का जो है पैगाम दिया कि मेरी बच्चियाँ मौजूद हैं और तेरी उम्र की कसम वो तो अपनी बदमस्ती में सरगर्दा थे और अल्लाह ताला ने जिस तरह से वो मंज़र बयान किया है, अल्लाह माफ़ करे वो तो ख़ैर वो ही जानते हैं कि जो ये किस किस्म का होगा, लेकिन ये जिस किस्म की बातें हैं तो इससे ये पता चलता है कि जब इंसान बहुत ज़्यादा शैतान के बहकावे में आ जाता है तो वो राइट एंड लेफ्ट किसी की भी नहीं सुनता। वो अपनी जो फ़िज़ूल तरीन गुनाह होते हैं उनको बड़ा अच्छा ख़्याल कर रहा होता है और वो बढ़-चढ़ के उसकी ज़बान भी ख़राब हो जाती है और साथ ही साथ उसके अमाल तो ख़राब होते ही होते हैं, लेकिन वो अलल-अलान इस चीज़ के ऊपर किसी मतलब ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने नशा किया, वो अपने उस नशे में, क्योंकि पहले आयत में ये भी आया कि वो अपने नशे में बदमस्त थे। तो अब यहाँ पे भी यही बात आई कि वो बदमस्ती में सरगर्दा थे। तो बात ये है कि वो बिल्कुल
बिल्कुल इस चीज़ को नहीं समझ रहे थे कि उन्हें क्या बात करनी है, उनकी अक्ल माऊफ़ हो चुकी हुई थी इतनी ज़्यादा, और कि किस तरह से किससे किस किस्म की बात करनी है। बस सूरज निकलते-निकलते इन्हें एक बड़े ज़ोर की आवाज़ ने आ पकड़ा और बिलाकर हमने इस शहर को ऊपर तले कर दिया। ये उन लोगों पर कंकर उन लोगों पर कंकड़ वाले जो उनसे थे, किंकर वाले पत्थर बरसाए, यानी कि उन पत्थरों के किनारे जो उनसे थे बने हुए थे, वो शार्प थे, और दूर से अगर कोई चीज़ आसमान से बरसती है तो बिल्कुल इस तरह से समझ लीजिए कि जैसे कोई समझ ले कि वो पत्थर कितने साइज़ के होंगे, हर साइज़ के होंगे। तो जैसे कोई मिसाइल्स होते हैं, बुलेट्स होती हैं, बिल्कुल इसी तरह की चीज़ें होंगी कि जो जिस चीज़ पे पड़ रही होंगी, तबाह कर रही होंगी। बिलाशुबा नसीहत हासिल करने वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियाँ हैं। अब जितनी बात अल्लाह ताला ने 3-4 आयात में और ये बयान की है, इस वाक़ये के अंदर बहुत बड़ी नसीहत है, इंसान को नसीहत पकड़ना चाहिए। ऐसे भी जो हम इर्द-गिर्द देखते हैं कि जब सुनामी आता है या कोई बस्तियाँ तबाह होती हैं या पत्थर गिरते हैं या पहाड़ टूटते हैं, तो किस कदर बड़ी तबाही होती है, और इंसान इस काबिल नहीं है। उन चीज़ों को सही करते-करते, उन मनाज़िर को ठीक करते-करते जितनी जानें ज़ाया होती हैं, उन सब के कितना इंसान मजबूर है कि उसको कितने दिन लग जाते हैं और वापस पहले जैसी चीज़ नहीं होती। तो इंसान को पता चला कि अल्लाह ताला के पास ज़्यादा ताकत और कुदरत है, लिहाज़ा जब बात समझाई जा रही होती है कि अगर कोई इंसान जो है वो अल्लाह ताला की हदूद का ख़्याल नहीं करेगा, तो फिर क्या हो सकता है? ऐसा अज़ाब जो आखिरत में मिलना था, वो उस दुनिया में पहले मिलता है। ये बस्ती ऐसी राह पर है जो बराबर चलती रही, आम गुज़रगाह है। यानी ये बस्ती जो-सी थी जहाँ पे ये बयान किया जा रहा था अहले अरब को भी, तो कुरैश मक्का को भी, तो वहाँ पे जो है वो उनके मतलब नज़दीकी थी, मुराद की शाहराह आम है, तो ये असल में ये कौम लूत की बस्तियाँ मदीने से शाम को जाते हुए रास्ते में पड़ती थी। इस रास्ते पर आने-जाने वाले को इन्हीं बस्तियों में से गुज़रना पड़ता था, काफ़िलों का वो रूट था। तो बिलाशुबा नसीहत हासिल करने वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानी है। बस्ती ऐसी राह पे जो बराबर चलती रहती है, यानी कि यहाँ से काफ़िले गुज़रते रहते हैं, और इसमें ईमानदारों के लिए बड़ी निशानी है। एका बस्ती के रहने वाले भी बड़े ज़ालिम हैं। अब आगे एका वाली जो उनसे अल-एका घने दरख्त को कहते हैं, यानी ऐसी बस्ती में घने दरख्त होने की वजह से इन्हें अस्हाबुल एका कहा जाता था, या जंगलात वाले कहा गया है। इससे मुराद कौम शुएब है। इनका ज़माना लूत अलैहिस्सलाम के ज़माने की बात का है। इनका इलाका हजाज़ और शाम के दरमियान कौम लूत की बस्तियों के करीब ही था। इसे मदयन कहा जाता है। तो जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे या पोते का नाम था, इसी के नाम पर बस्ती का नाम पड़ गया था। इनका ज़ुल्म ये था कि अल्लाह के साथ शिर्क करते थे। रहज़नी इनका शेवा था, यानी कि ये लूट-मार करते थे, काफ़िले जो जा रहे होते थे उनका सामान लूट लेते थे, और कम तोलना, कम नापना, जो अपना बिज़नेस करते थे उसमें भी ये खराबियाँ करते थे। यहीं पर जब अज़ाब आया तो एक बादल इन पर साया फ़िगन हो गया, यानी अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा बादल भेजा अज़ाब वाला। उसके अंदर से चिंगाड़, और उसके बाद यानी अज़ाब जो बादल का था साए वाले का, वो तो एक अलहदा था, और उसके अलावा भी एक चिंगाड़ की आवाज़, यानी बहुत तेज़ किस्म की चीख की आवाज़ थी, और उसके बाद जो है वो बहुत बड़ा शदीद ज़लज़ला आया था, जिससे कि तमाम जानदारों को हलाक कर दिया, उनकी पूरी बस्ती को हलाक कर दिया था। तो जिनसे कि आखिर हमने इंतकाम ही ले लिया था। ये दोनों शहर खुले आम रास्ते पे थे। ये दोनों शहर जो हैं अहले कुरैश के जो हैं वो नज़दीक है, और इस रास्तों को वो जानते हैं। तो ये इन बस्तियों की बातें अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं, और हिजर वालों ने भी रसूलों को झुठलाया था। ये जो हिजर वाले थे, ये सालेह अलैहिस्सलाम की कौम है, समूद इनकी बस्ती का नाम था। इन्हें असहाबुल हिज्र कहा जाता है। ये बस्ती मदीना और तबूक के दरमियान में थी। तो अब आजकल इस बस्ती के करीब अल-अला नामी जो-सा है, अल-ऊला नामी नाम का एक बड़ा शहर आबाद है, और हिज्र मदाइन सालह के नाम से मशहूर है। तो उन्होंने अपने पैगंबर सालेह अलैहिस्सलाम को झुठलाया था, लेकिन यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसीलिए फरमाया ना कि इन्होंने पैगंबरों को झुठलाया था। तो हमने इनको अपनी निशानियाँ भी अता फरमाई, ताहम इनसे वो रूगर्दानी करते रहे, यानी कि अल्लाह ताला की निशानियों को इग्नोर करते रहे। ये लोग पहाड़ों को तराश-तराश कर घर बनाते थे बेखौफ होकर के, यानी बड़े निडर थे, बड़ी उनके पास क्राफ्टमैनशिप थी, बहुत कुछ दिए गए थे। बिलाकर उन्हें सुबह होते-होते चिंगाड़ ने आ दबोचा। फिर इनकी किसी तदबीर और अमल ने इनको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाया। हमने आसमान और ज़मीनों को इनके दरमियान की सब चीज़ों को हक़ के साथ पैदा फरमाया है। क़यामत ज़रूर आने वाली है, और बस तू हुस्न खूबी और अच्छाई से दरगुज़र कर ले, यानी कि जो पढ़ रहा है उसके लिए भी नसीहत है, और जो सुन रहा है, और जो उस वक़्त भी ये वही उतारी जा रही थी कि यानी कि क़यामत आने वाली है, लिहाज़ा अच्छे तरीके से नेक काम कर लिए जाए। यकीनन आपका परवरदिगार ही पैदा करने वाला और जानने वाला। यकीनन हमने आपको 7 आयतें दे रखी हैं कि दोहराई जाती हैं, अज़मत वाले कुरान भी, और अज़मत वाला कुरान भी दे रखा है। अब देखिए यहाँ सबअन मसानी जो है वो मिनल मसानी जो है वो किसको कहा गया है? यहाँ पे जो बल्कि हमने सूरह अल-फ़ातिहा भी जब उसको पढ़ा था तो उसमें हमने ये चीज़ सीखी थी कि सबअ अल मसानी जो है उसको कहा जाता है। अलबत्ता मुफ़स्सिरीन का इसके बारे में इख्तिलाफ़ है। अक्सरियत तो उसको सूरह अल-फ़ातिहा ही कहते हैं, क्योंकि इसके साथ आयात हैं जो कि हर नमाज़ और नमाज़ की हर रकत में बार-बार पढ़ी जाती है। अब जहाँ पे आप नमाज़ में इसको नहीं पढ़ेंगे तो वो रकत या नमाज़ भी अदा नहीं होगी। और बात ये है कि अलबत्ता जो हदीस से जो तायीद हासिल होती है ना, जिस बात पे ये कुरान पाक की इस आयत को से समझा जाए, तो वो बात ये है कि वो भी तायीद ही इसमें हासिल होगी। तो वो ये है कि चुनांचे एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सबअ मसानी और कुरान अज़ीम है जो मैं दिया गया हूँ, और उससे पहले उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इस तरह से मतलब इसको फरमाया। तो सही अल-बुखारी की हदीस 4703, इसको भी आप देखिएगा, और एक और हदीस में फरमाया उम्मुल कुरान हिया सबअल मसानी वल कुरानुल अज़ीम। सही अल-बुखारी की हदीस 4704 है कि सूरह अल-फ़ातिहा कुरान का एक जुज़ है, इसलिए कुरान अज़ीम का ज़िक्र भी साथ ही किया गया है।
तो बात ये है कि यहाँ पे जो चीज़ बयान की जा रही है, वो ज़्यादातर जो है वो 7 आयत यानी कि इसकी तरफ ज़िक्र है। अब जो इख्तिलाफ़ी सूरत-ए-हाल है, वो वहाँ पे चूँकि इस तरह से तफ़ासीर में जो-सी है, वो बात लंबी हो जाएगी, तो हम सिर्फ़ ये कहते हैं कि चूँकि ज़्यादातर अक्सरियत का जो है वो जो है इसी हदीस की वजह से हम सूरह अल-फ़ातिहा को मानते हैं, तो हम इसी चीज़ को लेते हुए आगे चलते हैं। आप हरगिज़ अपनी नज़रें इस चीज़ की तरफ जो है ना दौड़ाएँ, जिससे हमने इनमें से कई किस्म के लोगों को अता कर रखा है, बहरामंद कर रखा है। ना इन पर आप अफ़सोस करें और मोमिनों के लिए अपनी बाजू झुकाए रखें। तो बात ये है कि जो कुफ़ार को, मुशरिकीन को, जो कोई भी मुसलमान ना हो, उनको कहीं दौलत मिली हो, कोई दुनिया में तरक्की मिली हो, जो कुछ भी मिला हो, तो उसको देख कर के ना जो है वो नहीं रश्क नहीं करना चाहिए। उनसे जो है कोई हसद भी नहीं रखना चाहिए, ना ये सोचना चाहिए कि उनको बड़ी दुनिया मिली हुई है। तो और बात बात ये है कि जो कुछ भी जो है मोमिन जब तशरीफ़ लाएँ या मोमिन जब होते हैं आपस में, तो वो एक-दूसरे के लिए कंधे बाजू झुकाए रखें, मतलब एक-दूसरे के साथ जौन-सा है वो एक-दूसरे के साथ जो है वो नरमी का सलूक करें, एक-दूसरे के साथ मवद्दत का सलूक करें, बाजू झुकाना वैसे जैसे परिंदों की तरह से लिया जाता है कि नरमी का रवैया, और जैसे अपने परों को परिंदा खोल देता है और उसके बच्चे उसके परों के नीचे आ जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने सूरह अल-फातिहा का पहले ज़िक्र बयान फरमाया, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने ये बात की, क्योंकि उस दौर में बहुत ज़्यादा मुसलमानों के साथ बुराई का सलूक हो रहा था, बुरी-बुरी बातें, फिज़िकली भी टॉर्चर किया जाता था, जिस्मानी लिहाज से भी, और बड़े-बड़े वाक़यात हैं हज़रत, मतलब जिस तरह से भी देखा जाए तो उस हिसाब से जो वाक़यात और सूरत-ए-हाल गुज़री हैं, उस वक़्त इन आयात में अल्लाह ताला एक तरह से तसल्ली दे रहे हैं कि मोमिनों के लिए अपने बाजुओं को झुकाए रखें, यानी उनके साथ अपने जैसे कि रवाबित होते हैं और आपस में वो जो है उनके साथ उनकी तरफ अपने ज़हन को करें और इन पर अफ़सोस नहीं करना चाहिए। और कह दीजिए कि मैं तो खुल्लम-खुल्ला डराने वाला हूँ, जबकि हमने इन कस्में खानों वालों पर उतारा है। किन पे कस्में खाने वालों पर उतारा है? यानी ये जो कुरान है, ये जो आयत है, ये जो वही है, ये इनके सामने आ रही है, और ताकि ये जो बड़ी कस्में खाते हैं कि ये हक़ पे हैं, तो ये इसको सुन के ये बताएँ कि फिर अब हक़ क्या है? तो जिन्होंने इस किताब इलाही के टुकड़े-टुकड़े कर दिए, कसम है आपके पालने वाले की, हम इन सब से ज़रूर बाज़-पुरस करेंगे। तो ये अब तक हमें अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया कि किताब इलाही के टुकड़े-टुकड़े कर देने से मुराद क्या है, कि अल्लाह ताला के अहकामात जो होते हैं, एक मुकम्मल चेन की सूरत में होते हैं। एक हिस्से को ले लेना, एक हिस्से को छोड़ देना। किताब के एक हिस्से पे अमल करना, एक हुक्म पे छोड़ देना। तो ये टुकड़े-टुकड़े कर देना है अल्लाह के हुक्म का। तो उस चीज़ की तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इस चीज़ की ज़रूर बाज़-पुरस होगी। तो अल्लाह माफ़ करे कि मुसलमान ऐसा करें। तो हर इस चीज़ की जो वो कुछ करते हैं, उसकी बाज़-पुरस होगी। बस आप इस हुक्म को जो आपको दिया जा रहा है, खोलकर सुना दीजिए, और मुश्रिकों से तो मुँह फेर लीजिए। आपसे जो लोग मस्खरापन करते हैं, उनके लिए, उनकी सज़ा के लिए हम काफ़ी हैं। जो अल्लाह के साथ दूसरों माबूद मुकर्रर करते हैं, इन्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा, हमें खूब मालूम है कि इनकी बातों से आपका दिल तंग होता है। आप अपने परवरदिगार की तस्बीह और हम्द बयान करते रहिए, और सजदा करने वालों के साथ जो है वो शामिल हो जाएँ, और अपने रब की इबादत करते रहें, यहाँ तक कि आपको जो है उनसे मुलाकात उनसे हो जाए, यानी कि आपको आप वफ़ात पा जाए। तो बात ये है कि यहाँ तक कि तमाम आयात में जिस तरीके से अल्लाह ताला ने मौज़ूआत को सारा बयान किया, वहाँ पे जो सारी सूरत-ए-हाल थी, किस्सा मुशरिकीन आपको साहिर, मजनून, काहिर और बहुत बुरी-बुरी बातें नाउज़ुबिल्लाह कहते थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि आप उनसे अपना ज़हन हटा के अपने दिल को मुसलमानों के साथ लगाएँ। आपको ये सबक मसानी जो दी गई है, और ये कि आप अल्लाह की हम्द व सना करें, और ये कि आप जो वही आपके ऊपर आ रही है उसकी तिलावत करें, नमाज़ पढ़ें, रब की इबादत करें। और चूँकि ये दिल के ऊपर जो बोझ है, ये अल्लाह के ज़िक्र से ही जाता है। इससे पहले भी ये बात अल्लाह ताला ने इसी तरह से बयान की, तो और अल्लाह की इस चीज़ के ऊपर उम्मीद रखें कि अल्लाह की मदद आपको हासिल होगी। तो यहाँ से कहना चाहिए कि जो एक टोटल ओवरऑल मैसेज पहुँचता है, वो हम तक भी यही पहुँचता है कि हमारे ऊपर भी कोई प्रॉब्लम हो, तो हमने इसी तरीके से यही नुस्खा इस्तेमाल करना है। ये है पूरी की पूरी एक रोड मैप कि जिसके ऊपर चलना है तो कामयाबी होगी। वरना इंसान बातों में खो जाए, बातों की तरफ ध्यान लगाए, या ये कि किसी ने बुरा सलूक किया, उसको ही सोचता रहे, तो वो कोई काम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जो है सूरह अल-हिज्र जौन-सी है, वो मुकम्मल होती है, और उससे आगे सूरह अन-नहल जौन-सी है, मक्की सूरत है, और वो शुरू होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अन-नहल का तर्जुमा शुरू करते हैं। सूरह अन-नहल जो है वो मक्की सूरत है। इसके 16 रकू हैं और इसकी 128 आयत हैं। इसका तर्जुमा से देखते हैं। अल्लाह का हुक्म आ पहुँचा, अब इसकी जल्दी ना मचाओ। यानी कि अल्लाह ताला का जो हुक्म है वो आ पहुँचा, यानी कि इसके 2 मतलब दिए जाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मबऊस फरमा दिए गए हैं, और दूसरा ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना और क़यामत का आना बहुत नज़दीक है। अब दुनिया की ज़िंदगी में हमें ये जो टाइम स्पैन है, हमें नज़र नहीं इस तरह से आता। आसमानों की तरफ जो वक़्त है, उसका सिस्टम और उसकी सारी मिक़दार जो है वो फ़र्क है। अल्लाह ताला वैसे भी जो है एक साथ जो है माज़ी को देख सकते हैं, एक साथ आगे फ्यूचर को देख सकते हैं, और उनके नज़दीक जो है क़यामत का आना बहुत नज़दीक उनको है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी और नबी ने नहीं आना, और उसके बाद का जो वक़्त गुज़रना है, और उसके बाद जो दज्जाल का आना, और उसके बाद क़यामत का आना, तो ये सारी चीज़ें जो-सी हैं बड़ी तेज़ी के साथ जो है उनका ज़िक्र है। तो लिहाज़ा ये इसका मतलब यहाँ पे लिया जाता है। अब इसकी जल्दी ना मचाओ। जल्दी किस चीज़ की वो मचा रहे थे? यानी कि वो अज़ाब माँग रहे थे। बात ये है कि क़यामत का ज़िक्र करना, देन सिम्बॉलिकली जल्दी मचाने का ज़िक्र करना, क्योंकि इस आयत में ज़रा बात को मिसाल के तौर पे इस तरह से पेश किया जा रहा है कि वाज़िया उस तरह से जो चीज़ नहीं हो रही। तो बात ये है, जब क़यामत आ जाएगी तो वैसे ही चीज़ों ने तबाह हो जाना है, और तमाम जो उनसे है अमाल वो ख़त्म हो जाएँगे, और फिर वापस मुड़ा नहीं जा सकेगा। फिर अगर किसी के लिए बुराई का अगर रास्ता जो इख्तियार किया होगा, तो उसके लिए जो अज़ाब जो-सा है वो मुसलसल होगा, और उसके लिए, लेकिन जब किसी के लिए जब अज़ाब दुनिया में आ जाता है जिस कौम के लिए, उनके साथ फिर ये मामला उसी हिसाब से हो जाता है, यानी कि वो दुनिया में उस चीज़ को ले लेते हैं, और उनके लिए क़यामत जौन-सी है वो एक बड़े दिन की वाली बात, उनके लिए क़यामत उसी दिन कायम हो जाती है। तो बात यही है कि ये लोग जल्दी मचा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने एक वक़्त तो क़यामत का मुकर्रर कर रखा है, या जिस चीज़ का जो, तो वो तो इसको जल्द अगर माँग रहे हैं, तो वो जो है वो उनके ऊपर
नबी के होते हुए जो-सा है, वो नहीं किया जा सकता। तमाम बाकी इसके लिए है वो बरतर है, इन सब से जिन्हें अल्लाह के नज़दीक शरीक बतलाते हैं। ये जो कुछ भी तब भी और अब भी लोगों ने अल्लाह के साथ चीज़ें जो है अपनी जानिब से गढ़ रखी हैं, फैब्रिकेटेड जो होती हैं, अल्लाह के अलावा जो शरीक बनाए हुए हैं, वो अल्लाह जैसे नहीं है और अल्लाह का उनसे कोई मुकाबला नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला जब कभी हमें कोई मिसालें देके बयान करते हैं, जैसे अभी जो हम आगे पढ़ेंगे आयात, तो वो कुदरत किसी और के पास ऐसी नहीं है। तो वही फ़रिश्तों को अपनी वही दे करके अल्लाह का जो ये हिदायत है, ये दे करके अपने हुक्म से अपने बंदों पर जिस पर चाहता है उतारता है, ताकि तुम लोग को आगाह कर दो कि मेरे सिवा कोई और माबूद नहीं, बस तुम मुझसे डरो। ये अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्टली जैसे मुखातिब करके उनको ये बात बयान फरमाया है कि ये जो है आपके पास ये हुक्म आ गया, लिहाज़ा आप सबको ये पास ये पहुँचा दें, ताकि वो मुझसे जो है वो डरें। यानी कि अल्लाह ताला का ये हुक्म जो है नबी पाक का के ऊपर आया हुआ, उनका ये काम है, उनका ये मनसब है कि उन्होंने आगे तक पहुँचाना है। अब देखिए बात तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो रही है, लेकिन जो कोई भी इंसान इसको पढ़ रहा है और उस वक़्त जो सुन रहे थे, अहले किताब हुए, मुशरिकीन मक्का हुए, और वो जो उनका मज़ाक उड़ाते थे, उनको पता चल जाए कि वो अल्लाह की तरफ से अपॉइंटेड हैं, उनको ये मनसब उन्होंने अता किया है, और ये कि उनका काम है ये कि वो आगे तक ये बात को पहुँचाएँ, और वो अल्लाह ताला की जानिब से जो है उनका ये काम वो अंजाम दे रहे हैं, ठीक है? और जो कुछ वो उनके बारे में कहते थे, जैसे मज़ीद आगे आयत में कि गलती से कोई वही लेके इधर चले गए, या जिब्रील अलैहिस्सलाम या नाउज़ुबिल्लाह जिस किस्म की कहानियाँ अहले किताब ने बनाई हुई थी, या अहले मक्का मज़ाक उड़ाते थे कि उनकी तरफ कोई आए ऐसे और वो ये काम करे, वो इस काबिल हों, तो अल्लाह ताला ने तमाम बातों का जवाब इस आयत में दे दिया। बस इसी ने आसमान और ज़मीन को हक़ के साथ पैदा किया, वो इससे बरी है जो मुशरिक करते हैं। इसने इंसान को नुतफ़े से पैदा किया, फिर वो सरी जिगरालू बन बैठा। तो अल्लाह ताला ने बयान किया कि अल्लाह ताला ने इंसान को नुतफ़े से पैदा किया है, यानी कि बहुत ही छोटी पानी की जो एक बूँद से जो पैदा किया गया है, और वो अब वो सरी झगड़ालू बन बैठा है, यानी जब इंसान खा पी के बड़ा हो जाता है उसका जिस्म, और वो उस उम्र में बड़ा हुआ, तो वो अब आगे से झगड़ता है अल्लाह ताला की आयत के खिलाफ, अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ। तो जो इंसान है अपनी हकीकत देखे, पीछे जब अल्लाह ताला ने जिस तरीके से मतलब चीज़ें और भी बयान की थी कि इंसान की किस तरह से पैदाइश है, इंसान किस तरह की चीज़ से मिल कर के बना है मिट्टी से, तो जो इंसान जो है इतना तकब्बुर और इतना अपने आप को आज तो देख रहे हैं, तो अपनी हकीकत को देखें। इसी ने चौपाए को पैदा किया, जिनमें तुम्हारे लिए गर्मी के लिबास है, बहुत से मुनाफ़े हैं। तो चौपाए से जो 4 टाँगों वाले जो जानवर हैं, इनमें से बाज़ के ऊपर जैसे कि उनकी जो बाल होते हैं, उनसे ऊन बनाई जाती है, और भी बहुत से मुनाफ़े हैं। तो आप खुद देखें, इनमें गोश्त है, इनकी हड्डियों से चीज़ें बनाई जाती हैं, इनकी खाल से, जो इनकी चमड़ों से, तो वो जो लेदर और सारे बैग्स और जैकेट्स, बहुत कुछ बनता है। पूरी-पूरी इंसान ने इंडस्ट्रियाँ बनाई हुई हैं, और तुम्हारे खाने के काम आते हैं, और इनमें तुम्हारी रौनक भी है जब चुरा कर लाओ, यानी वो जब चराने ले जाओ। ये जो चुराना वाला है ना, ये वो जो थेफ्ट है, वो वाली बात नहीं हो रही, चोरी की बात नहीं हो रही। इसकी बात हो रही है चूँकि हम लोग शहरों में रहते हैं, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। जब बहुत कोई इस किस्म का कारोबार करता है, या जिसके पास ज़्यादा माल मवेशी होते हैं, जानवर होते हैं, और वो इस तरह की चीज़ करे, तो एक बहुत बड़े रेवड़ की सूरत में जब वो मैदानी इलाकों में जिस जगह पे रह रहे होते हैं, उनको लेकर के जाते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी, एक तरह तो ज़ाहिर-सी बात है, ये जानवर वेल्थ भी तो होते हैं किसी इंसान की दौलत का, या उसका मज़हर होते हैं, कि ये एग्ज़ाम्पल होती है कि उसके पास इतना माल है, या मतलब इतनी कीमती, लेकिन साथ में खूबसूरती भी तो जानवरों की होती है ना, वो उनकी रौनक लगती है, वो उस तरह से जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये सारी बातें जो है वो इस तरह से बयान की कि जब वो खाना खाने के लिए बाहर उनको लेके ले जाया जाता है, या वो इस तरह से, तो वो तुम्हारे बोझ इन शहरों तक उठा के लेके जाते हैं। कुछ जानवर ऐसे भी तो होते हैं कि जो इंसानों का जब तक ये गाड़ियाँ इस तरह से इजाद नहीं हुई थी, जो आजकल की शक्ल है, तो इंसानों के बोझ बहुत अरसे से इस दुनिया में अल्लाह ताला ने जो जानवर पैदा किए हैं, तो यही इंसानों का बोझ लेके जाते हैं। और आगे आयत क्या कह रही है कि जहाँ तुम जानों की मशक्कत के बगैर पहुँच ही नहीं सकते थे, यानी इनकी हेल्प के बगैर इतना सामान उठा के इंसान नहीं जा सकता था। यकीनन तुम्हारा रब बड़ा ही शफ़ीक और नहायत मेहरबान है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे अपना रऊफ़ और रहीम होने का ज़िक्र किया है। तो बात ये है कि रऊफ़ और रहीम होने का ज़िक्र, ये जो आगे पीछे जो मिसालें बयान की जा रही हैं, इनसे क्या ताल्लुक है? बात ये कि इतना इन डेप्थ जाकर के अल्लाह ताला ने सोचा कि इंसान ये काम भी नहीं कर सकेगा, तो हर तरह का आराम, देखिए इसमें पहले भी कितनी बातें अल्लाह ताला ने वाटर साइकिल की बयान की, कभी खेती की बातें कर रहे हैं, कभी जो इंसानों के रिश्ते बनाए गए हैं, ज़मीन में पानी का सिस्टम, तो कुछ भी तो इंसान इजाद खुद नहीं कर सकता। इंसान को अगर कह दिया जाए कि वो बारिश जो-सा है उसका शेड्यूल बना ले, नहीं बना सकता इंसान इस तरह से। तो ये सब चीज़ें जो जानवर से फ़ायदे हासिल हो रहे हैं, और जिस तरीके से अल्लाह ताला जो बात बयान करते जा रहे हैं, तो फिर ये जो शिर्क वाली बातें जिसमें एक सवाल आता है, तो फिर इंसान सोचे कि जिनको अल्लाह के अलावा सोचा जाता है, तो ये इसमें गलत कौन है फिर? इस सारी बात में जो ये कि अल्लाह को बुरा क्यों लगे? इसलिए कि अल्लाह ने एक-एक चीज़ इस पूरे ज़मीन को, उस प्लैनेट को सजा करके, और पूरा इर्द-गिर्द जो सूरज और चाँद और सितारे हैं, वो भी तो सारे के सारे इंसानों के लिए जो है अल्लाह ताला ने उनको इंसानों के लिए इस तरह से मुसख्खर कर दिया। ये बातें जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं पीछे, और वो तुम्हारे यकीनन तुम्हारा रब बड़ा ही शफ़ीक और नहायत मेहरबान है, और अगर अल्लाह ताला शफ़ीक और मेहरबान ना होते इतने ज़्यादा इंसान पे, तो ये सारी प्लानिंग ना करते। घोड़ों को, खच्चरों को, गधों को इसने पैदा किया ताकि तुम इन पर सवारी करो, बाइसे ज़ीनत भी है। जिस वक़्त ये आयत उतर रही थी, उस वक़्त जो ज़्यादातर काम जो-सा था, इतनी तरक्की तो नहीं हुई थी जैसे आजकल के इस टेक्नोलॉजी में, कैसे कि सवारी के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती थी। अब तो सवारी के लिए जो सामान और चीज़ें इस्तेमाल होती थी, उसके लिहाज़ से, और आज भी जहाँ इंसान के पास ये वाली सहूलियत ना हो जो शहरों में है, तो यही जानवर आज भी वैसे ही काम आते हैं। और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये गाड़ियाँ और ये चीज़ें नहीं जा सकती, वहाँ पे ये जानवर जो हैं बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किए जाते हैं, इस्तेमाल होते हैं पहाड़ी इलाकों में भी। तो ये किसने बनाए हैं इनको? क्या इंसान ने डिज़ाइन किया है इनको? इनके अंदर वो इनके सिस्टम में डाल दिया कि वो इस तरह से काम किया? अल्लाह ने किया है।
तो वो और वो बाइसे ज़ीनत भी हैं। जब इंसान उनको ज़्यादा तादाद में अपने पास रखता है या उनको बनाता-सँवारता है, और बहुत सारे तो जानवर ऐसे होते हैं, जैसे घोड़ों का अगर ज़िक्र किया जाए, जिसमें बहुत-बहुत कीमती नस्ल के घोड़े होते हैं, अरबी नस्ल के और उस तरह से, और ये किसी की वेल्थ का इज़हार होता है कि उसके पास इतने कीमती नस्ल के जानवर हैं। चाहे वो कोई सी भी, मतलब आप ले लें गाय, भैंस या बकरे या कोई इस तरह की टाइप की चीज़ें, तो ये इनको आम आदमी अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकता, और उनको मेंटेन रखना, उनका ख़्याल रखना। तो जिस तरीके से लोग अपनी नई-नई गाड़ियाँ लेके शान-ओ-शौकत का इज़हार करते हैं अपने पैसे का, इसी तरीके से जो ये माल-मवेशी और जानवर वग़ैरह होते हैं, तो जो एग्रीकल्चर किस्म की इकोनॉमी में या वैसे भी जो है जिनके पास ये मतलब इलाके हों ऐसे, तो ये हर ज़माने में ये इसी तरीके से इंसान की हैसियत का इज़हार रहे हैं, स्टेटस सिंबल रहे हैं। और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें पैदा करते हैं कि जिनका तुम्हें इल्म नहीं। तो दुनिया में अभी भी कितने ऐसे जानवर हैं जिनका पता चलता है कि वो अब दुनिया में ख़त्म हो चुके, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और उनके फॉसिल्स मिल रहे हैं। और या ये कि जो है समंदर में कितनी मखलूक है जो अभी तक इंसान को पता चल रही है। इंसान उस ज़माने में जब ये आयात उतर रही थी, तब तो इंसान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि उसको ये पता चल सके कि 3 मुल्क छोड़ के चौथे मुल्क में अगर बर्फ़ों वाले पहाड़ हैं, बर्फ़ानी पहाड़ हैं, वहाँ कहाँ कौन से पौधे होंगे, कौन से फल होंगे, कौन से जानवर होंगे। लेकिन अब तो हमारे पास दुनिया हाथ में सिमट आई है, और वैसे भी हम बहुत अरसे से चीज़ें जानते हैं। और वहाँ पे तो शायद लोग इतने दूर-दराज़ इलाकों के सफ़र भी नहीं करते होंगे, तो इतनी वैरायटी का उनको पता नहीं होगा। तो ये जो मिसालें और जिस तरीके से बयान की जा रही हैं, तो ये इंसान की आँखें खोलने के लिए काफ़ी है कि अब तो हमें पता है कि इस दुनिया में इस कदर वैरायटी है, इस कदर, मतलब कहना चाहिए कि इंसान सोचता है कि एक जानवर या एक भी चीज़ को बनाते हुए अल्लाह ताला ने क्या-क्या नहीं सोचा होगा। और खुद इंसान अपने आप को देखे कि किस कदर खूबसूरती है इंसान को बनाने में, जो सिस्टम है सब इंसान के। और इंसान खुद चाहे कि ये जो सारा कुछ अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि एक-एक चीज़ इस दुनिया में हम एक भी बनाने लग जाएँ ना, तो पता नहीं कितने इंसान मिलकर के कितने टाइम में इसको कर पाएँगे। मेरा ख़्याल है एक मक्खी भी नहीं बना पाएँगे, जो कि अल्लाह ताला की भी वो मखलूक है। दरमियानी राह अल्लाह की तरफ पहुँचने वाली। हमने इहदिना सिरातल मुस्तकीम का सवाल किया था। यहाँ पे अल्लाह ताला ने फिर से वही वाला जवाब दिया कि दरमियान में, यानी एक सीधी राह है अल्लाह की तरफ जाने वाली। और आयत में आगे है कि और बाज़ टेढ़ी राहें हैं, और अगर वो चाहता है तो तुम सबको राह रास्त पे लगा देता है। तो टेढ़ी राह क्या होती है? जो सीधी राह होती है, उसकी राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ टेढ़ी राहें होती हैं, जो कि सीधे तरीके से नहीं जाती अल्लाह के रास्ते की तरफ। और बाज़ लोगों के ऊपर इसी तरीके से इंसान को शैतान बहका करके अल्लाह के राह से दूर ले जाता है, और लेकिन शुरुआत वो नेकी के कामों से करवाता है, तो वो टेढ़ी राह लगना देखने में तो ये लगता है कि अल्लाह ताला की नेकी की राह की पैरेलल चल रही हैं, लेकिन आगे से कोई रास्ते गुम जाते हैं और वो सीधी राह की तरफ नहीं जाते। इसलिए होशियार रह जाना चाहिए। लेकिन साथ में अल्लाह ताला ने एक चीज़ का ज़िक्र किया, वो तुम अगर वो चाहता तो तुम सबको राह पे, सीधी राह पे लगा देता। यानी अल्लाह ने अपनी विल पावर को इस्तेमाल नहीं किया, अपनी विल इंसानों पे इम्पोज़ नहीं की, अपनी मर्ज़ी नहीं ठूसी, बल्कि इंसानों को उनके हाल पे छोड़ दिया। यही तो सारा टेस्ट है। हाँ, अलबत्ता ये चॉइस ज़रूर रखी कि अगर कोई माँगे तो उसको लाज़िम तौर पे अल्लाह ताला अता फरमाएगा। किसी के लिए तोहफ़तन भी तो ये चीज़ माँगी जा सकती है ना। दुआ जो होती है अपने मुसलमान बहन-भाई को या इंसानों को तो दी जा सकती है ना। अपने लिए भी जैसे इंसान माँगता है, तो फिर वो हदायत ही क्यों ना हम किसी के लिए माँगे। अब तो मौसम भी है, अब तो ख़ास किस्म का मेहरबान महीना है, अल्लाह ताला का ख़ास एक मज़हर है, तो अल्लाह ताला की हुर्मत वाले महीनों में से निशानी है, तो हम सब के लिए दुआ इसमें दिल खोल करके माँगे। वही तुम्हारे फ़ायदे के लिए आसमान से पानी बरसाता है, जिसे तुम पीते भी हो, इसी से उगे हुए दरख्तों में से तुम अपने जानवरों को जो है चराते हो, यानी कि उनका खाना उसमें है। इसी से वो तुम्हारे लिए खेती और ज़ैतून और खजूर और अंगूर और हर किस्म के फल उगाता है। बेशक इन लोगों के लिए तो इसमें निशानी है जो गौर व फ़िक्र करते हैं। देखिए, वही ज़मीन है और वही जो है पानी है। पानी पे हम देख के हमें समझ नहीं आता पानी में कोई चेंजेस है कि नहीं है। अब तो ख़ैर अलबत्ता ऐसे लेबोरेटरी टेस्ट इजाद हो चुके हैं, इंसान में जाके चेक करता रहता है कि किस पानी में किस चीज़ की कमी है और क्या करना चाहिए। और लेकिन अल्लाह ताला ने अभी भी जो सिस्टम बनाया हुआ है वाक़तन बड़ा ही बाकमाल है कि वही पानी और वही ज़मीन, लेकिन जो पैदावार निकलती है बीज के ऊपर से, पूरी टेक्नोलॉजी क्या है, एक छोटे से बीज के ऊपर जो है ना वो एम्फसाइज़ करती है कि उधर से जो पौधे निकलेंगे उनके अंदर फल फ़र्क है। अब जैसे अंगूर को अंगूर बनना था या उसके अंदर किस तरह की मिठास होगी, अंगूर में भी बड़ी क्वालिटीज़ होती हैं और बड़े किस्म के फल होते हैं, और इसी तरीके से ज़ैतून जो है उसमें भी तरह-तरह के ज़ैतून होते हैं। हम तो अगर 2 मेन किस्मों को जानते हैं कि ब्लैक ऑलिव्स हो गए, काले वाले हो गए, सब्ज़ वाले हो गए, इसी तरह खजूर की कितनी किस्में हैं, हर तरह की चीज़ें, वही पानी। अब जो जिन लोगों ने खाली खजूर के बाग लगाए होंगे अरबों के यहाँ पे, तो ये पूरी उनकी एक तरह से एक इसी के ऊपर वो तिजारत इसकी करते थे, इसके जो दरख्तों को लगाते थे, तो तरह-तरह की खजूरी थी उनके पास। लेकिन जिसने खजूर के बाग बनाए होंगे, वो दरख्त लगाए होंगे, एक ही जैसा पानी सबको जाता था ना। सवाल तो ये जो बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, वो ये कि एक ही पानी है, एक ही ज़मीन है, लेकिन तरह-तरह की वैराइटियाँ निकलती हैं। तो इसमें देखिए कि किसने ये सब कुछ इतना सोच समझ के पैदा किया है। बेशक इन लोगों में तो इसलिए जो है निशानी है, जो गौर व फ़िक्र करते हैं, इसने रात और दिन और सूरज को तुम्हारे ताबे कर दिया और सितारे भी इसी के हुक्म के मानते थे। तो भी ये पीछे यही बात सोच रहे थे। तो अल्लाह ताला ने यही चीज़ इसमें बयान कर दी कि ये जो चीज़ें हैं इस दुनिया में सब की सब, यानी ज़मीन भी इंसान को फ़ायदा दे रही है, पानी भी, आसमान पे जो सूरज और चाँद और सितारे, ये सब अल्लाह ताला ने इंसान के मातहत कर दिए हैं। अच्छा, तो ये इंसान के लिए है, तो जब किसी को बताया जाता है ये आपका गिफ्ट है, ये आपके लिए है, तो जैसे कोई फैमिली में किसी को कोई आपको गिफ्ट देता है, कोई भी वो रिश्ता हो, अज़ीज़ रिश्ता हो या कोई जैसे कि कितने दिनों के सफ़र के बाद घर आए तो घर वालों के लिए तोहफ़ा लेके आए, तो इंसान इतने सारे गिफ्ट देके कहता है कि वो इतनी ढेर सारे गिफ्ट, बहुत शुक्रिया आपका। तो इंसान ज़रा रुक के सोचे कि पैदा होने से पहले से लेकर के और अब तक जो सारी ज़िंदगी का टाइम है मरने तक, वो गिफ्ट एंड देन आगे की जो सारी गिफ्टिंग अल्लाह ताला ने तैयार कर रखी है, तो वो उनको हम शुक्रगुज़ार नहीं होंगे उनको शुक्रिया नहीं कहेंगे? क्या उनके उनसे हम मोहब्बत नहीं करेंगे? कोई दुनिया में किसी को बार-बार अगर तोहफ़ा देता है, तो जो भी अल्लाह ताला ने हमारे अज़ीज़ रिश्ते नाते बनाए हुए होते हैं, इंसान को ये फीलिंग आती है, एक वार्म्थ सी फ़ील होती है, वो ये कि इतना ख़्याल किया जा रहा है, या अगर ज़ाहिर-सी बात है अगर किसी को किसी का ख़्याल आता है तभी तो उसके लिए कोई तोहफ़ा लेता है, तभी तो वो उसके लिए कोई एफ़र्ट करते हैं। तो वो जो एफ़र्ट होती है उसकी वजह से इंसान सोचता है कि ये मेरे बारे में सोचा है या ख़्याल किया है, और इतना वक़्त लगा के कोई अगर मेरे लिए तोहफ़ा लेके आया है, तो इंसान उसके ऊपर जो है वो उनके लिए भी वही जज़्बात रखना शुरू हो जाता है। तो ये अल्लाह ताला की ज़ात है, वो नज़र थोड़ी आ रही है, लेकिन ये है कि नज़र नहीं आ रही, वो हमारी आँखों से नज़र नहीं आ रही, लेकिन इतना कुछ जो उन्होंने बनाया है, सोचना चाहिए किसने इतना आराम इस प्लैनेट पे, इस
ज़मीन पे हमें दे दिया। तो ये अल्लाह ताला से जो है क्या इंसान जो है इससे समझता नहीं इतनी बड़ी चीज़ है सूरज, चाँद और सितारे। दुनिया की चीज़ें तो चले हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, लेकिन सूरज, चाँद और सितारे और जो दिन और रात आ रहा है, अच्छा अगर अल्लाह मियाँ की बात को चेक करते हैं, कि जो हम अल्लाह ताला ने कहा कि सूरज और चाँद की जो है सारी टाइमिंग्स का जो हिसाब है, वो सारा इसे हम कैलेंडर का भी मतलब देखते हैं 1-2 जगह पे जिस तरह से आया कुरान पाक में। तो हम कैलेंडर जो यूज़ करते हैं, हमारे अलावा कौन-सी और मखलूक है जो कैलेंडर इस्तेमाल करती है? क्या कभी गाय ने कैलेंडर इस्तेमाल किया या जो पानी में जो गोल्ड फिश आती है या ये बाकी व्हेल मछली है या ये कछुए ये इस्तेमाल करते हैं? या ये जो ऊपर आसमानों के ऊपर जो है तोते उड़ रहे हैं या जो कोई किस्म के परिंदे उड़ रहे हैं, चिड़िया वगैरह, इनको ज़रूरत होती है कैलेंडर की? इन्होंने हिसाब रखना होता है दिनों का, ये इसके मुताबिक चलते हैं महीनों के मुताबिक। तो हम खुद सोचें कि अल्लाह मियाँ जो बात कह रहे हैं, वो कितनी सही कह रहे हैं। तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं यकीनन इसमें अक्लमंद लोगों के लिए कहीं एक निशानियाँ मौजूद हैं। तो खाली सूरज, चाँद और सितारे जो है कैलेंडर के लिए ही यूज़ नहीं होते। हमारा जो पानी के अंदर जैसे कि फुल मून जब होता है, तो पानी के अंदर जो उतार-चढ़ाव होता है समंदर में, जिसको उर्दू में मद्दो-जज़र कहते हैं, तो ये सारे जो सिस्टम है टाइड्स का, उसकी वजह से पानी अंदर से कैसे साफ़ होता है और किस तरीके से उसके अंदर जो है नरिशिंग बॉडीज़ पैदा होती हैं और पानी जो इसका जो इसके अंदर से इसके अंदर जो मखलूक़ात है, उनके लिए वो कितना अच्छा साबित होता है। तो ये सारे जो सिस्टम है क्योंकि चाँद का जो है वो इस तरह से पानी के अंदर लहरें और ये सारे सिस्टम को पैदा करना पूरा हमारे इकोसिस्टम का एक हिस्सा है और अगर ये चीज़ ना होती तो पानी के अंदर जो चीज़ें थी वो गल-सड़ सकती थी, सड़ाहट पैदा हो सकती थी। इस कदर ज़्यादा इसमें टेक्नोलॉजी की और बातें भी पाई जाती है जो हमें अल्लाह ताला ने की जो टेक्नोलॉजी है ना वो समझ आती है। उसके पीछे उनका क्या ज़हन है और वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ किसके लिए किया गया है? इंसान को इस ज़मीन पे ठहराने के लिए। तो ये कोई छोटा बंदोबस्त तो नहीं किया गया। ये तो कोई वीवीआईपी सिस्टम से भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। इंसान जो एक छोटा-सा घर बना लेता है, होटल्स बना लेते हैं, 7 स्टार या उससे भी ऊपर, इंसान समझता है ये जो लग्ज़री जो इसके अंदर रख ली है बड़ी बात की है जी। कोई टावर बना लिया, कोई जैसे बुर्ज खलीफा की तरह या इस तरह की बातें, ये बहुत बड़ी बात हो गई। अल्लाह ताला यहाँ जो बातें कह रही है ना, ये पूरी यूनिवर्स की जो एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, इसमें सिर्फ़ एक प्लैनेट की एग्ज़ाम्पल अगर ली जाए, जिसके इर्द-गिर्द एक सूरज, एक चाँद और ये सितारे जो हमें नज़र आ रहे हैं, जो कि एक्चुअली हम जानते हैं कि वो भी बहुत सारे सूरज और बहुत सारी ज़मीनें और बहुत सारे और मिल्की वेज़ जो हमें दूर से सितारों की तरह नज़र आ रहे हैं। तो ये जो इतना बड़ा सिस्टम बना रहे हैं, तो कहाँ गया हमारा बुर्ज खलीफा? कहाँ गए हमारे वो 7 स्टार होटल्स? कहाँ गए वो अगर लग्ज़री से बना हुआ एक छोटा-सा घर? अल्लाह की कंस्ट्रक्शन को देखें, उनकी क्रिएशन को देखें और इधर देखें। क्या सस्टेनेबिलिटी है, किस चीज़ को किस तरह से कायम रखा हुआ है, इंसान आके चलते जा रहे हैं, यहाँ से ख़त्म होके चले जाते हैं और यहाँ पे विज़िट करके चले जाते हैं, सिस्टम चल रहा है। उसके लिए सामने कोई एडमिनिस्ट्रेटर नज़र नहीं आता कि जो उसको चला रहा है और अल्लाह की ज़ात है कि जो उसको थामे हुए, जो हमें आयतल कुर्सी से बात मिलती है। तो हमें आज तक अपनी हिस्ट्री में नहीं ये पता चलता जो हमने हमारी जैसी मखलूक ने जो अपनी डॉक्यूमेंटेशन कर रखी है कि कहीं किसी वक़्त चाँद ने कहा हो कि मैंने अब नहीं निकलना और किसी महीने जौन-सा है, वो हमारा महीना जौन-सा है, वो 30 दिन से बढ़ कर के 40 दिन का हो गया हो। ठीक है ना? क्योंकि हमने तो काउंट किया हुआ है इनको चाँद और सूरज से, तो ये बातें सोचने वाली हैं। और भी बहुत सी चीज़ों की तरह-तरह के रंग और रूप हैं कि इसने तुम्हारे लिए ज़मीन में फैला रखी हैं। बहुत सारी और भी नेमतें हैं और वो हमें मालूम है। अल्लाह ने एक जैसे नज़ारे नहीं रखे हर तरह के कॉन्टिनेंट में, तरह और एक ही मुल्क में। अगर हम किसी एक मुल्क की बात करें तो अगर मुल्क में सफ़र भी किया जाए तो बाज़ जगहों के ऊपर एक मुल्क में तो 5 मौसम मिल जाते हैं। किसी जगह पे 4 है, किसी जगह 3 है, किसी जगह इससे भी ज़्यादा है। जितना-जितना कोई बड़ा मुल्क होगा उतनी बड़ी उसकी उसकी मतलब कहना चाहिए ज़मीन की ख़ासियतें, रंग तब्दील हो जाते हैं और वहाँ के मंज़र तब्दील हो जाते हैं। इतनी डाइवर्सिटी, इतना कुछ, इतना किस्म की चीज़ें पैदा करना और इंसान की इस तरह की खुराक के, इस तरह की जो सब्जियाँ और चीज़ें कि इंसान तरह-तरह के खाने बनाना, ये सब इल्म इंसान को और ये सब खूबसूरतियाँ किसने अता की? तो ये अल्लाह ताला की ज़ात है। बेशक नसीहत कबूल करने वालों के लिए इसमें बहुत भारी निशानी है, बड़ी भारी निशानी है और दरिया में भी इसने तुम्हारे बस में कर दी है ताकि तुम इसमें से ताज़ा गोश्त खाओ, इसमें से अपने पहनने के लिए ज़ेवरात निकाल सको। तुम देखते हो कि कश्तियाँ इसमें पानी चीरती हुई चलती हैं, इसलिए भी कि तुम इसका फ़ज़ल तलाश करो। यानी अल्लाह ताला ने ना सिर्फ़ ज़मीन के ऊपर इंसान के लिए रिज़्क रखा है, बल्कि पानी के अंदर भी रखा है। लेकिन कभी रुक के सोचिए, जैसे हम एक मखलूक है, हमें तमाम जौन-सा है अपनी मर्ज़ी का इख्तियार की ताकत दे दी गई। अगर पानी भी एक मखलूक है, अगर उसको ताकत देती होती, तो क्या पानी जो है हमें अपने उसके अंदर जो सब कुछ फ़ज़ल की चीज़ें लेने देता? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर पानी को जब अल्लाह ताला के हुक्म से जब वो ताकत पे आता है, तो वो कैसे बस्तियों को तबाह कर देता है सुनामी बन के। यानी कि अल्लाह ताला उसको जब बेकाबू होने के लिए ताकत दे देते हैं कि वो हो जाए, वरना जो साहिल समंदर होते हैं कितना कामनेस फील होती है वहाँ पे जा कर के, कितना सुकून महसूस होता है, कितना अच्छा पानी अच्छा सा फ्लो कर रहा, लेकिन वही अच्छा सा पानी जो फ्लो कर रहा जब सुनामी बन के आता है वो कैसी तबाही मचाता है और ज़रा सी लहरें थोड़ी सी उनका मद्दो जज़र ज़्यादा हो जाए और या कोई ज़्यादा उस तरह से हो जाए तो जो वाटर लेवल के ऊपर सारी चीज़ें होती हैं कैसे तबाह होती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो चीज़ें अल्लाह ताला ने राहत बनाई हुई हैं, इंसान जब बात नहीं मानता तो वही फिर ज़हमत भी बन जाती हैं। तो बात ये है कि अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी निशानियाँ इसमें रखी हुई हैं। तो फिर क्या है कि जो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने बात बयान की कि इसमें तुम इसका फ़ज़ल तलाश कर सको। अल्लाह का फ़ज़ल जो होता है ना, फ़ज़ल बहुत ही खूबसूरत चीज़ होती है। एक होता है रिज़्क और एक होता है फ़ज़ल, ठीक है? तो ये कि और हो सकता है कि तुम शुक्रगुज़ारी भी करो। सारी बातें बयान करने के बाद यानी कि एक पूरा समझें कि
एक पिक्चर से अल्लाह ताला ने सामने ला दी कि ये भी है, ये भी है, ये भी इतनी अच्छी-अच्छी नेमतें, इंसान उनके बारे में सोचता है, वो तस्वीर सामने ज़हन की आती है और फिर उसके बाद क्या? फिर उसके बाद अल्लाह ताला कह रहे हो सकता है कि तुम शुक्रगुज़ारी करो। तो हमारे इतने अच्छे रब ने, प्यारे रब ने हमें ये नहीं कहा कि तुम शुक्र तो करो, इतना कुछ तुम्हें दिया है और ये ऐसे तोहफ़े एक्सपायर नहीं होते। ये जब तक अल्लाह ताला ने दुनिया कायम रखी हुई है और इस पे इंसान को कुछ खर्च नहीं करना, ये सब कुछ फ्री में मिल रहा है। वो कहते हैं ना कि फ्री में सब कुछ, जैसे किसी वो वेब पेज पे जाएँ या उस तरह से कि ये सारे फ्री फीचर्स हैं, ये आपके लिए है। तो ये जो फ्री फीचर्स अल्लाह ने यहाँ दिए हुए हैं ना इस दुनिया में, पैरामीटर्स भी, ये एक्चुअली सब इंसानों के लिए, सब जानदारों के लिए यहाँ पे, और ये इतने काम के हैं और इतने ज़रूरी हैं, इनके बगैर, सूरज के बगैर और चाँद के सिस्टम के बगैर कोई भी लाइफ़ यहाँ पे सस्टेनेबल नहीं है, इस दुनिया में बच नहीं सकती। इसी तरह पानी के लिए भी हम यही बात कर सकते हैं। ये तमाम एक इकोसिस्टम में है, जब तक ये तमाम चीज़ें, गुड पैरामीटर्स जिनके साथ ये बैलेंस करके इस दुनिया में ज़िंदगी बनती है इस प्लैनेट के ऊपर, इनका एक सिस्टम है। तो इस सिस्टम को, इनमें से एक भी चेन में एक ही चीज़ को तोड़ दिया जाए, तो ज़िंदगी नहीं बचेगी। इंसान खुद देखे फिर इंसान की औकात क्या है? खाना ना मिले कितने दिन तक, पानी ना मिले कितने दिन तक, और ऑक्सीजन ना मिले, हवा का मीडियम ना हो कितनी देर तक। और ये सब बातें सोची जाए और सूरज ना निकले तो यहाँ पे कोई पैदावार ना हो और जानवर भी ज़िंदा ना बचे। ज़्यादा सर्दी हो जाए तो भी हमारे लिए मसला है, ज़्यादा सूरज की गर्मी हो जाए तो भी हमारे लिए मसला है। तो यहाँ पे सीज़न का तब्दील होना भी हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम तो बहुत जल्दी बोर हो जाने वाली मखलूक हैं, ठीक है? तो अल्लाह ताला ने हमारा दिल यहाँ पे लगाने के लिए सीज़न के भी सिस्टम रखे हैं। और इस सीज़न के अंदर तरह-तरह के फल, चीज़ें, कितना कुछ है जो तब्दील हो जाता है, लिबास तब्दील हो जाता है, सीन तब्दील हो जाता है, मौसम तब्दील क्या हुआ, खाने, चीज़ें, कितना कुछ तब्दील हुआ। कभी सोचना चाहिए इस चीज़ को। तो क्या है कि हो सकता है कि तुम शुक्रगुज़ारी कर लो। बड़ी खूबसूरत तरीके से अल्लाह ताला जो है ना वो बात को बयान करते हैं। तो और इसने ज़मीन में मज़बूत पहाड़ गाड़ दिए ताकि तुम्हें हिला ना दे। अब पहाड़ों की बात अल्लाह ताला ने बयान की। जो अब टेक्नोलॉजी बताती है कि जितने पहाड़ ऊपर नज़र आते हैं, उतने ही पहाड़ ज़मीन के अंदर हैं। ये क्यों ज़रूरी थे? क्योंकि हमारी ज़मीन जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द जो घूमती है, तो वो अगर ये पहाड़ ना होते, तो जो कशिश जो हमें नज़र नहीं आती, जैसे 2 मकनातीसों के दरमियान एक ताकत पाई जाती है कशिश की, तो उनको एक-दूसरे को वो रिपेल भी करते हैं, दूर भी रखते हैं और एक-दूसरे को वो अट्रैक्ट भी करते हैं, एक-दूसरे को खींचते भी हैं एक-दूसरे की तरफ। ये एक बैलेंस होता है। अगर आप 2 मकनातीस को एक जैसी ताकत वालों को हाथ पे पकड़ के एक ख़ास सतह पे लेके आएँ, तो वो एक उसके अंदर वो जो ताकत होती है ना, वो महसूस हो रही होती है। लेकिन हम इंसान होते हुए भी 1 से 2 से 3 दफ़ा भी क्या होता है कि बाज़ दफ़ा ज़रा-सा हाथ हिला और वो फ़ौरी तौर के ऊपर जो-सा है, या तो आपस में दूसरे से टकरा जाते हैं या वो मतलब उस, लेकिन देखिए अल्लाह ताला ने आज तक कैसे उस सारी मैग्नेटिक फ़ील्ड को, मकनातीसियत को कायम रखा हुआ है और सिस्टम को बना के छोड़ दिया हुआ है। हमें तो कुछ नज़र नहीं आता, हमें तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि जो हर वक़्त चाँद को पकड़-पकड़ के घुमा रही हो ज़मीन की तरफ, या ज़मीन अपने एक्सिस पे घूम रही हो, या सूरज और बाकी सारे प्लैनेट में जो सब कुछ हो रहा है, मिल्की वेज़ में भी और पूरी यूनिवर्स में, ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता। तो कोई उसको घुमाने वाला नज़र नहीं आता, वो खुद ब खुद अपने मदार में घूम रहे हैं, ये अल्लाह ताला की टेक्नोलॉजी है, ठीक है? और वो आपस में टकराते भी नहीं हैं, आपस में एक-दूसरे को क्रॉस भी नहीं करते उस तरह से, जिस तरह से रखा गया है, बिल्कुल वैसे बड़ी स्मूथली मूव कर रहे हैं। वरना किसी भी चीज़ की जिस तरह से जो धमाके सूरज पे हो रहे हैं, इंसान तो ऐसी मखलूक है कि वो आवाज़ इंसान के कानों में पहुँच जाए, तो इंसान उसी से बेहोश हो जाए। बेहोश सॉरी क्या, खत्म हो जाए, बल्कि हमारी ज़मीन ही फट जाए। इतने शदीद है, क्योंकि हम सूरज के बहुत नज़दीक हैं। बाकी जो दूर सितारे हैं एक्चुअली वो भी सूरज हैं, वो बर्न हो रहे हैं, उनके अंदर उनकी गैसेज़, तो उनकी रोशनी निकलती है, जब तक हम तक आती है वो तब तक ख़त्म भी हो चुके हुए होते हैं। ये है दुनिया के वक़्त का निज़ाम और यूनिवर्स के, कायनात के वक़्त का निज़ाम। हमारी ज़मीन का वक़्त का जो निज़ाम है वो बहुत फ़र्क है। यहाँ पे टाइम बहुत और तरीके से जहाँ चलता है। लिहाज़ा जब ये सारा सिस्टम पढ़ा जाता है, देखा जाता है, कुरान को देखिए जो अल्लाह बात कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी हकीकत समझ आती है। वो इल्म जो आपको अल्लाह तक ना पहुँचा सके, वो इल्म जो आपको अल्लाह से दूर ले जाए, तो फिर उस इल्म का क्या करना? इल्म तो वो इल्म है कि जब इसको सीखा जाए और उसके ऊपर जब आप रिसर्च करके तो आपको पता चले कि ये हस्ती कितनी ही बाकमाल है और उन्होंने कभी भी सब कुछ होते हुए भी कि उन वो हकदार हैं, उन्होंने कभी आके नहीं कहा कि बुरे तरीके से कि उनका हक है और कोई उनकी बात ना माने, तो उनकी बर्दाश्त इतनी ज़्यादा है कि वो इतना टाइम आउट देते हैं कि इंसान खुद इस तरफ आए। और वो कितना फिर कोई जुल्म क्यों, ज़ालिम फिर अल्लाह ताला काफ़िरों को कहेंगे? क्यों कहेंगे? तब समझ आता है। क्योंकि जिनको अल्लाह के अलावा पूजा जाता है या समझा जाता है कि ये डायटी, ये बुत जो है सबसे ज़्यादा हमें फ़ायदा दे रहा है, और वो व्हाटएवर इंसान की अपनी ख्वाहिश हो या कोई मेंटोर हो, दुनिया की कोई ऐसी चीज़ जिसको वो फ़ॉलो करना शुरू हो जाए, सूरज, चाँद, सितारे, पहले ज़मानों में जो कुछ लोग करते हैं, अभी भी बहुत से लोग को फ़ॉलो करते हैं, अभी भी बहुत से लोग जो है अपने इज़्म को देखते हैं, तो क्या ये सब बनाई गई बातें अल्लाह के आगे कोई हैसियत रखती हैं? क्या इन्होंने अल्लाह की तरह जो सब कुछ चीज़ें अल्लाह यहाँ पे वन बाय वन, एक-एक करके हमें बता रहे हैं, मैंने ये बनाया, मैंने इस तरह से रखा, दुनिया का सिस्टम चेक करो, क्या उन्होंने कुछ ऐसा किया है? कुछ भी, एक छोटा-सा एक डॉट नहीं। तो फिर यहाँ पे क्या अल्लाह ताला क्या क्यों बता रहे हैं ये? ये जो पहाड़ होते हैं, अगर ये ऐसे ना होते और अगर हमारी ज़मीन जितनी स्पीड से अब चल रही है, अगर ये इससे ज़रा-सी तेज़ होती या इससे ज़रा-सी स्लो होती, तो बड़ा कुछ तब्दील हो जाता। स्लो होती तो हमारे जो सारा सिस्टम है दिन और रात का और जो हमारे मौसम है, ये सब तब्दील हो जाते। हमारी खेतियाँ ना उग पाती, और अगर तेज़ हो जाती, तो हम इस पे चल ना सकते। हम इस किस्म की मखलूक हैं, हमें तो पता भी नहीं चलता, आवाज़ भी नहीं आती। हालाँकि ये आवाज़ है इसकी, कायनात में हर चीज़ की आवाज़ है। और ये जो हमारे इर्द-गिर्द जिसको हम नीला आसमान कहते हैं, जो गैसेस लेयर बनी हुई है ओज़ोन की, ना सिर्फ़ ये शुआओं को रोकती है, ना सिर्फ़ ये बाहर से आने वाली तेज़ रोशनियों को रोकती है, बल्कि ये उस हवा आवाज़ को भी ख़त्म कर देती है।
جو کہ आवाज़ वहाँ पे स्पेस में उस तरह से मतलब उनका सही अल्लाह ताला ने जो मीडियम्स रखे हुए हैं, जिस तरीके से रखे हुए हैं, उनको किसी जगह पे अगर ना पहुँचने का हुक्म दिया हुआ है, तो वो इसी तरीके से है। बड़ा कुछ है जो इस दुनिया में है, जिसकी हमें बिल्कुल समझ नहीं है और अल्लाह ताला ने किताब में अगर बयान की है, वो इसके अलावा है। तो बात ये है कि ताकि तुम्हें हिला ना दे, और हिला ना देने से मुराद यही थी ना, अगर ये ना होते तो ज़मीन तेज़ी से घूमती और इंसान जो है वो इसके ऊपर हरकत ना कर सकता, और ज़मीन के ऊपर चल फिर ना सकता, रह ना सकता, बस ना सकता, और नहरें और राहें बना दी ताकि तुम मंज़िल मकसूद को पहुँचो। यानी कि नहरों के अंदर, पानी के अंदर जो है इंसान बड़ी तेज़ी के साथ सफ़र भी करता है। सफ़र तो इंसान इंसान जो है ज़मीन के ऊपर सड़कें बना के भी करता है, और बहुत सी निशानियाँ मुकर्रर फरमा दी, और सितारों से भी लोग जो हैं वो राह हासिल करते हैं। तो क्या वो जो पैदा करता है इस जैसा है जो पैदा नहीं कर सकता? क्या तुम बिल्कुल नहीं सोचते? अब ये बात वहीं पे आ गई कि इंसान जो शिर्क करता है जिनके लिए करता है, क्या वो ऐसा कर सकते हैं? अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो तुम इसे नहीं कर सकते। बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है, और जो कुछ तुम छुपाओ और ज़ाहिर करो अल्लाह सब जानता है। और जिन जिन लोगों को अल्लाह के नाम के सिवा पुकारते हैं, वो किसी चीज़ को पैदा नहीं कर सकते, बल्कि वो खुद पैदा किए हुए होते हैं। मुर्दे हैं, ज़िंदा नहीं। और इनमें से अक्सर औक़ात जो चीज़ें होती हैं, इनसे जो लोग लेते हैं, आज भी मुसलमान जिस तरह से समझते हैं कि जो लोग वफ़ात पा गए हैं, सालेह लोग हैं, तो ये बहुत इस तरह से अच्छे। तो उस ज़माने में भी जो बुत बनाए हुए थे, जो सई के मुकाम पे रखे हुए थे, मक्का में रखे हुए थे और खाना काबा के पास रखे हुए थे, जगह-जगह पे तरह-तरह के बुत थे। असल में वो पहले ज़माने के अच्छे नेक लोग भी थे, उनकी यादगारें बना के रख ली हुई थी। उनको याद करते-करते उन्होंने उन्हीं की पूजा शुरू कर दी थी कि ये अल्लाह के नेक लोग हैं, अल्लाह के पास चले गए हैं, हमारी दुआएँ वहाँ तक पहुँचाएँगे। एग्ज़ैक्टली बिल्कुल ऐसे आज भी जो हैं इंसान इसी तरह से करते हैं। तो बाज़ दफ़ा ये कहते हैं कि जी ये ज़िंदा पीर हैं, और ये बाज़ी जो हैं वो अपनी कब्र में ज़िंदा है, वो हमारी आवाज़ें सुन रहे हैं, वो इस तरह से करते हैं। तो इस तरह की बातें हैं। तो क्या है कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो तुम इससे नहीं कर सकते। बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान है, और मेहरबान है। जो कुछ तुम छुपाओ और ज़ाहिर करो, अल्लाह सब कुछ जानता है। और जिन-जिन लोगों को ये लोग अल्लाह के सिवा पुकारते हैं, वो किसी चीज़ को पैदा नहीं कर सकते, बल्कि वो खुद पैदा किए हुए हैं। मुर्दे हैं, ज़िंदा नहीं। इन्हें तो ये भी शऊर नहीं कि कब उठाए जाएँगे। अब ये कब्रों वाली बात ही हो गई ना, और उन्हीं की बात होगी जिनका बुत बनाया गया है। और तुम सबका माबूद सिर्फ़ अल्लाह अकेला है, और आखिर पे ईमान ना रखने वालों के दिल मुनकर हैं, वो खुद तकब्बुर से भरे हुए हैं। बेशक अल्लाह हर उस चीज़ को जिसको लोग छुपाते हैं और जिसे ज़ाहिर करते हैं बखूबी जानता है, वो गुरूर करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। इनसे जब दरियाफ़्त किया जाता है कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या नाज़िल फरमाया, तो जवाब देते हैं कि अगलों की कहानियाँ हैं। वही उतर रही है। लोगों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एग्ज़ाम्पल दे करके और पहले नबियों की बातें बता करके उनको चीज़ें बयान कर रहे हैं। और ये ज़रूरी भी था, क्योंकि अहले किताब भी वहाँ मौजूद थे जो कि नबी का इंतज़ार कर रहे थे। और उस चीज़ को कन्फ़र्म हो रहा था सब कुछ, कि जो कुछ उनके पास है, जो कुछ वो हालात ज़िंदगी पीछे उनकी नस्लें गुज़ारती चली आई हैं, अल्लाह ताला ने इस किताब में उनकी असलियतें बयान कर दी कि बनी इसराइल ने क्या किया और बाकी जगहों के ऊपर क्या किया। एक-एक को उनकी बातें बयान कर दी गईं। और ओवरऑल जब पूछा जाता है ये वही क्या है, मुशरिकीन मक्का हो या इनकार करने वाले लोग हों, तो वो बात करते हैं कि ये तो पहले लोगों के किस्से कहानियाँ बयान कर रहे हैं। क्या ये किस्से कहानियाँ सिर्फ़ गॉसिप करने के लिए, या किस्से कहानियाँ सिर्फ़ जैसे अरब खुद किस्से कहानियाँ करते थे हज के मौके पे, या वैसे बैठ-बैठ के कहानियाँ सुनाते थे, फैब्रिकेटेड हों, या वैसे वो बढ़ा-चढ़ा के बयान करते थे, कितने बंदे मारे, कितना जंगें लड़ी, कितने-कितने साल, कितने कोई जितना जवान होगा, बहादुर होगा, कितने लोग मारे होंगे, उतना ही उसका मतलब शिमला ऊँचा होगा, उसके कितने पॉइंट्स बन जाएँगे। इस तरह तो नहीं है। अल्लाह ताला ने तो सिर्फ़ इस बात से ये बयान किया, जब भी किसी बात को बयान किया, वो ये बात बयान किया कि जिन लोगों की साइकी थी ना मानने की, वो क्या वजह थी जो उस गलती का शिकार हुए, वो नहीं करनी हमें। हमें बताया जा रहा है बतौर सबक कि यहाँ से ये सीखें। और जिन लोगों ने मान लिया, अल्लाह के रास्ते पे चले, उनके ऊपर इस दुनिया में भी आखिरत में भी इनाम है। और उनकी किस वजह से जो है, उनके अंदर क्या ऐसी क्वालिटी थी कि उन्होंने मान लिया, और वो अल्लाह ताला ने उनका साथ दिया कि नहीं दिया। ये भी तो चेक किया जाता है इन सारी बातों के अंदर। और ये किसी की फैब्रिकेटेड कहानियाँ नहीं है, एक्चुअल लोगों की ज़िंदगी की कहानियाँ हैं, तजर्बे हैं ये। बिल्कुल इस तरह से जैसे फैमिली में कोई एक बिज़नेस एस्टेब्लिश कर लेता है, बिज़नेसमैन बन जाता है, और अगर उसका नीयत और दिल अच्छा हो, तो अपने इर्द-गिर्द के लोगों को, अपनी फैमिली के लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से वो मशवरे देते हैं और कहते हैं कि ये गलती ना करना, ये इस तरह से कामयाबी कर पकड़ो। तो वो जो गाइडलाइन होती है, उसको जो फ़ॉलो करता है वो कामयाब हो जाता है। वो अपनी एक कम्युनिटी बना लेते हैं। तो बिल्कुल इस तरीके से अल्लाह ताला टिप्स भी दे रहे हैं, बता भी रहे हैं। तो क्या ये ज़रूरी है कि जिस वजह से दूसरे लोग तबाह हुए, या जो गलत रास्ता है उस रास्ते पे चला जाए, क्या अब नसीहत ना पकड़ी जाए? नसीहत पकड़ने के लिए कोई ना कोई एग्ज़ाम्पल तो देनी होगी। तो क्या ये इस तरह से मज़ाक उड़ाया जाएगा कि ये किस्से कहानी है? ये किस्से कहानियाँ तो नहीं है। तो ये तो हमें नसीहत की जा रही है। तो ये है 2 अप्रोचेज़ का फ़र्क, जो कि एक सोच समझ करके जब इंसान की अप्रोच ये हो जाएगी कि इसको इग्नोर मारना है और ये किसी काबिल कदर कोई बात ही नहीं है, किसी की नसीहत, किसी की खैर-ख्वाही, अल्लाह का रहमान और रहीम होना, या उनकी वो क्या वो हमारे साथ अच्छे और सच्चे दोस्त नहीं है, तो वो तो फिर इसको किसी खातिर में नहीं लाएँगे। वो शुक्रगुज़ार क्यों बने फिर? किस वजह का शुक्रिया करें, जब वो कि अल्लाह को उस हिसाब से, उस हैसियत से मान ही रहे। लेकिन जब एक इंसान जितनी सारी बातें अल्लाह ने बयान की है, बड़े अच्छे तरीके से बयान की हैं, बड़े दलाइल के साथ बयान की हैं, वो सारी लॉजिक लेते हुए और कहा वो जो निशानियाँ लेते हुए, फिर लोगों की बातें सुनते हुए जो उन्होंने ज़िंदगियाँ गुज़ारी, तो देखते हुए फिर जब अल्लाह की तरह की बात सोचेंगे, तो क्या अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार नहीं होंगे? पता चलेगा कि अल्लाह के तो हमारे ऊपर बहुत एहसानात हैं। हम तो डूबे हुए हैं सर से लेके पैर तक, और इस सिस्टम से तो हम निकल के किसी दूसरे प्लैनेट में भी चले जाएँगे, वो भी तो उसी की पैदावार है। हम भी तो खुद उसकी मखलूक हैं। तो फिर हमें क्या हुआ कि हम अपने रब की ना माने, उनके साथ ना जुड़े। पावर को अगर कोई एन्जॉय करना चाहता है, तो वो किसी पावरफुल के साथ जुड़ जाता है, दोस्ती उसके साथ करता है। और ऐसा दोस्त जो इतनी इनाम और इकराम की बारिश करता हो, बगैर माँगे देता हो, और जब उसके साथ दोस्ती कर ली जाए, उसकी बात मान ली जाए, फिर तो एंडलेस पावर आपके साथ है। आप जो उसे कहें तो वो आपकी बात माने। तो ये किस तरह से मुमकिन है कि इस मतलब कि वो धोखा दे जाए? जो कि उन्होंने सारी बातें यहाँ पे कोट की कि उनके साथ जिन्होंने उनके साथ वादा निभाया, वो सबसे अच्छे वादा निभाते हैं। और शैतान के तो पीछे सारी बातें बयान की गईं, और दोज़ख के मंज़र तक बयान कर दिए गए। वो जो जंग वाला वाक़या था जिसमें वो उस वक़्त भाग गया, जब 2 फ़ौजें आमने-सामने आ गई, लड़ाई करवा के वो वहाँ से भाग गया।
तो कहने का मकसद ये है कि भगोड़ों से दोस्ती रखनी है, उनसे दोस्ती रखनी है, या ऐसे अल्लाह के साथ के जो सबसे ज़्यादा अपनी बात को जो है मतलब अपनी बात को पूरा करने वाले। तो इसका नतीजा यही होगा कि क़यामत के दिन ये लोग अपने पूरे बोझ के साथ इन्हीं के बोझ के भी हिस्सेदार होंगे, जिन्हें बेइल्मी से ये गुमराह करते रहे हैं। देखो तो कैसा बुरा बोझ उठाते हैं। तो जो किसी को मिसगाइड करेगा, अल्लाह के बारे में गलत बात बताएगा, फिर वो अपना भी ज़िम्मेदार है, और जिसको गुनाह के रास्ते पे बुलवा रहा है, उनके गुनाह का भी वो ज़िम्मेदार है, उसका भी बोझ उठाएगा। इनसे पहले के लोगों ने भी मकर किया था, आखिर अल्लाह ने इनके मंसूबों की इमारतों को जड़ों से खेड़ दिया, इनके सरों पर इनकी छतें ऊपर से गिर पड़ी। वो अक्सर मुफस्सिरीन कहते हैं कि इससे मुराद नमरूद या बख्त नसर है, जिसने आसमान पर चढ़ने के लिए एक बुलंद इमारत तामीर की, जिस पर चढ़ तो गया, चढ़कर इसने मकर किया कि ये अल्लाह ताला ने इस इमारत को गिरा दिया है। बाद मुफस्सिरीन के ख्याल में ये एक एग्जाम्पल है, जिससे अल्लाह ताला ये बयान करे कि अल्लाह के साथ कुफ्र और शिर्क करने वालों के अमल इसी तरह बर्बाद हो जाएंगे कि जैसे किसी मकान को बनाया जाता है, उसकी बुनियादें अच्छी नहीं होती हैं, तो जितना आपने टावर तामीर कर दिया, ऊपर बड़ी अच्छी खूबसूरत इमारत बना ली, तो वो क्या हुआ, किसी वक्त भी तबाह हो जाती है। तो जो बुनियाद है ना, दैट इज एक्चुअली ईमान। ईमान, ठीक है। तो जो ईमान ही नहीं होगा, तो फिर इंसान की दुनिया के जितने भी अच्छे नेक काम होंगे सब ज़ाया चले जाएंगे। तो क्या है कि पहले ईमान को दुरुस्त करना है, अपने लिए अल्लाह को के लिए खालिस करना है, अल्लाह की माननी है, फिर जो सारे काम किए जाएंगे उनका फ़ायदा होगा। तो और जिन कौमों ने फिर अल्लाह के नबियों की तकज़ीब की या उनको झुटलाया, तो चाहे वो दुनिया में क्या कुछ ना करके गए, सब तबाह तबाह बर्बाद हो जाएगा। ये है सारी बातें। इनके पास अज़ाब वहाँ से आएगा जिनका इन्हें एक वहम व गुमान भी नहीं था।